Hello and welcome to 20th episode of Coach I Need Help. Hi, I'm Manish Ahuja and the person on the other side of the screen who's smiling right now in Hi. three. Okay, he's smiling already. That's Pankaj Agarwal. Pankaj and I come together every week and talk to you about various aspects of the coaching business, digital business, the whole landscape of digital marketing in India, and many other topics associated with any digital business of sorts. So, we've been on this journey for 19 weeks, and today is the 20th week. And considering both of us are coaches, or predominantly coaching or coaches are a big part of our businesses, we have come across one topic very often, which is how do you start a coaching business with bare minimum capital, with bare minimum requirements? Can somebody start a coaching business part time? Should coaching business be started part time? Now, there are multiple angles to this question. There's a reason why we do a deep dive episode on podcast episode on subjects like these, because if we want, we can make a lot of points in just a 5 minute or a 10-minute episode. But when you actually go through this entire episode, you'll understand multiple aspects of what are the requirements of a coaching business. How do you start a coaching business with as little as, let's say, 20,000 rupees or 5,000 rupees per month? We are going to talk about subjects like these today. Stay tuned, stay connected, and hello, welcome Pankaj. How are you doing? Hi Manish ji, I'm doing good. How are you? I'm doing good. कैसे हो, क्या चल रहा है? आज एकदम आपका बस सेटअप अभी बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, बस हर बार लैपटॉप से रिकॉर्ड करते थे। आज हम सोचे कि आईफोन लिए तो आईफोन से एक बार रिकॉर्ड करके देखते कि कैसा आता है, तो आज देखिए उसी से देखिए, बहुत रिकॉर्ड कर अच्छा आ रहे हैं। रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है. बताइए. ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक बेसिकली कॉमन आता है। मैं कुछ दिन पहले ही आ रहा था। कुछ दिन पहले क्या, हर कुछ कुछ दिन में लोग पूछते हैं कि, क्योंकि मैं एजेंसी भी चलाता हूँ, तो जिनको ऑडियंस को नहीं पता है, तो मैं मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूँ जो सिर्फ कोचेस के लिए फोकस्ड है। तो जब भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, तो वो लोग बोलते हैं कि एड में पूछते हैं कितना लगाना है, तो मैं बताता हूँ इतना लगाना है, कम से कम 30 40 50 हज़ार रुपये लगाना है। फिर आपका फी कितना है? इतना है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे 1 1.5 लाख रुपए तो आपका हर मंथ खर्चा करना होगा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर हम कल सोच रहे थे कि कुछ सस्ता उपाय लगाया जाए कि कैसे, मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितना बजट होना चाहिए। इनफैक्ट जो हम्म. मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, वो भी, फिर मुझे याद है कि वो इस प्रोसेस से गई थी। तो वो हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे कि कम से कम बजट में कैसे चालू किया जा सकता है आज। सही बात है. एंड कहीं ना कहीं this is a fruit of the experience that we have had, because both of us have spent a lot of time with coaches. I particularly come from the other side of the spectrum, where I have invested a lot of money in my coaching business, and I have realized that maybe that would not be possible for everybody to do. But there are too many thoughts that we have. So let's start with that. पंकज, यस। सबसे पहले बात करते हैं कि चलो, कोचिंग बिजनेस करने के लिए कैपिटल तो एक सेकंड रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग तो एक रिक्वायरमेंट है. एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? What are the absolute bare minimum requirements according to you to start a coaching business? Would you want to talk about something in that? यस। यस। तो सबसे पहले बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि आप जो टॉपिक पे सिखाना चाह रहे हो, Correct. वो आपको आना चाहिए। मतलब ये 100%. सुनने में काफी ऑब्वियस लग रहा होगा बहुत जन को, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक नहीं भी आता है तो वो लोग सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं कोर्स चलाता था, स्टार्ट अभी हाल फिलहाल में वापस से कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, बट पहले जब 3 इयर्स पहले मैं लाइव कोर्सेज लॉन्च करता था, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरे कोर्स ज्वाइन करते थे। हाँ वो जी. पहले में भी जॉब कर रहे होंगे, बट वो देखेंगे कि चलो नया करियर ऑप्शन आया ऑनलाइन कोचिंग, तो इनका कोर्स ज्वाइन कर लो। फिर हम पूछते थे उस पर्टिकुलर आदमी से कि आपका क्या निश क्या है। जब निश क्लैरिटी वाला सेशन चल रहा होता था, तो वो बोलता था कि मैं यही पढ़ा देता हूँ ना, सेम चीज। तो बोले सेम चीज मतलब क्या? तो बोले कि यही कि लोगों को सिखा दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। बोले अच्छा। फिर हम उसको कन्विंस किए, कन्विंस नहीं हुआ, फिर हम उसको रिफंड देके हटा दिए। क्योंकि अ, मतलब उस सक्सेस उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि वो खुद उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता था। हम हम्म. पूछे भी थे उसे डिटेल्स में कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं था। बस आपसे सीखना और सिखाना है। और हमारा जो कोर्स है वो तो लाइव चलता था कि एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो मिनिमम आपको अपना स्किल आना चाहिए। Correct. अब उसके लिए कि कैसे पता चले कि आपको अपना स्किल आना चाहिए, हम्म. उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। अगर ऑडियंस कोई देख रहे हैं, या फिर उनको पता करना है कि क्या क्राइटेरिया मुझे स्किल आता है, तो आता है आपको लगता है वर्सेस
एक्चुअल में आप एलिजिबल हो कि नहीं पढ़ाने के लिए, करेक्ट। उसका कुछ पैरामीटर्स होता है। तो पहला तो हो गया आपका कि आपका लाइफ में एक्सपीरियंस क्या है हम्म। उस चीज के बारे में। मतलब तीन चार तरीके से लोग पढ़ा सकते हैं इसको। हम्म। एक तो हो गया कि आप कहीं से कुछ एक्सपीरियंस सीखे, कोर्सेज मान लेते हैं आप कहीं से सीखे, उसको आप अपने लिए इम्प्लीमेंट किए हो हम्म। लाइफ में, तब आप उसको सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप बेकिंग का कोर्स कहीं से कर लिए, करेक्ट। और फिर आप घर में खुद से केक वगैरह बना रहे हो, रोज बना रहे हो लगातार, तो आपको एक्सपर्टीज आ गया है कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, और हम्म। ये चीज अब लोगों को मार्केट में डिमांड भी है, हम्म। तो मैं सिखा सकता हूँ इसको। या फिर कुछ प्रोफेशन है आपका, मान लेते हैं कि आप प्रोफेशन है आपका कि आप मान लेते हैं 10 साल से आईटी इंजीनियर उसमें आईटी इंडस्ट्री में हो, और आप जावा पे कोडिंग कर रहे हो, करेक्ट। तो उसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्टीज ला चुके हो, सुबह शाम हम्म। आपका वही काम है। तो अगर वो आप रियल टाइम में कर रहे हो तो आप सिखा सकते हो। कहने का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप खुद के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हो, एटलीस्ट खुद के लिए करो, या फिर हो सकता है किसी और के लिए कर रहे हो, मे बी वेट लॉस अपने लिए भी किए या फिर किसी और के लिए करवा रहे हो, तो वो आप करेक्ट। लोगों को सिखा सकते हैं। मतलब एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि बस किताब में पढ़ ली है तो हम लोगों को सिखा दिए। या मनीष जी वैसा इमेजिन करिए कि जैसे कि ड्राइविंग कोई किताब से पढ़ रहा है, वो सोच रहा है ड्राइविंग सीख गया, और वो सामने जाके किसी को सिखा रहा है ड्राइविंग कि चलो हम तुमको सिखाते हैं, तो दोनों का भगवान एक्सीडेंट हो बचाए जाएगा ना फिर। ऐसे लोगों के साथ, और ऐसे लोगों को तो भगवान ही बचाए। वही तो, स्टार्टिंग में अगर मार्केटिंग उनका तगड़ा रहा, हम्म। जैसे मान लेते हैं अगर वो मेरे पास आया, हम उनका मार्केटिंग कर दिया, तो हम्म। बिकना तो चालू हो जाएगा कोर्सेज, लेकिन करेक्ट। फिर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। डिलीवरी नहीं दे पाएगा तो फिर स्पैम कमेंट्स, मतलब कमेंट्स आएंगे उनके पास कि ये स्कैमर है, ये है, वो है, और फिर रिफंड लोग मांगेंगे, और फ्यूचर में रिपीट सेल्स कभी होना जाना है नहीं। तो इससे बढ़िया मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों की कि स्टार्टिंग में सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर जाके उसको लोगों को सिखाओ। आपका क्या कहना है मनीष जी इसके बारे में? ये एकदम परफेक्ट है। मतलब एक तो आपको स्किल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम्म। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस में हमने बहुत सारी चीजें, मतलब मैं एक्सपीरियंस को सिर्फ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं गिनता हूँ। हम्म। मेरे लिए एक्सपीरियंस एक पूरा एक इक्वेशन है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हम्म। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको एक क्लियर आउटकम बताना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि सपोज अगर जैसे आपने बताया किसी को बेकिंग पसंद है, तो वो अगर बेकिंग कोर्स बना रहे हैं या कोचिंग बेकिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो उनका हम्म। क्लियर आउटकम होना चाहिए। क्योंकि बेकिंग में क्रोजॉन्स भी आ जाएंगे, केक्स भी आ जाएंगे, यस। बेक डिशेस भी आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि वो बेकिंग में भी एग्जैक्टली क्या सिखाने वाले हैं। और बेकिंग फ्रॉम द स्क्रैच सिखा रहे हैं कि बेकिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ मार्केट रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब सिखाना बताना बहुत जरूरी है। ताकि हम्म। एक तो उनका एक्सपर्टीज मार्केट में क्लियर तरह से कम्युनिकेट हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, एक एक्सपेक्टेशन कभी खराब ना हो कस्टमर का, और एक्सपीरियंस कभी बिल्कुल। खराब ना हो। उसके अलावा आपके एक्सपीरियंस में आपका एक अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए कि आपके पास एक जेन्युइनली इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट को दे रहे हो, जिससे आप मार्केट में आपकी डिमांड बनी हुई रहेगी, और आपको वैलिडेशन भी मिलेगा कि हाँ लोग आपसे खरीद रहे हैं। हम्म। एंड ऑफर के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेल्स स्किल्स के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है ना, ये सारी चीजों का मिश्रण है। हम बोल देते हैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। जैसे एक सिंपल कहानी, मतलब सिंपल बात बताते हैं कि कितनी बार होता है कि एक हम्म। इंसान होगा जो भले अपने ही यूनिवर्सिटी में टॉपर आया हो, और उसने ठीक है। 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, 8 महीना पहले एक जॉब ज्वाइन किया है, सपोज कोडिंग में। और हम्म। एक दूसरा इंसान है उसी की टीम में जो 5 साल से कोडिंग कर रहा है। भले ये जो हम्म। टॉपर है वो अपने आप में बहुत शार्प होगा, लेकिन जिस इंसान के पास 5 साल का कोडिंग एक्सपीरियंस है, उसके पास जो एक इनटैंजिबल स्किल है, जो एक इनटैंजिबल एडवांटेज है, वो ये 8 महीने से जॉब में जो है वो नहीं समझ पाएगा, भले कितना भी शार्प हो। तो ये सारी चीजें बन जाने के बाद में जब लाइफ एक्सपीरियंस बनता है आपका, मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है लोगों का एक कोच बनने में। बिल्कुल। तो कन्विक्शन तो आपको तभी आएगा ना, कन्विक्शन सबसे इसमें मुझे एक और आप अच्छा पॉइंट बताए, कन्विक्शन। तो भले एक्सपीरियंस भी होता है लोगों के पास, स्किल भी होता है, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मतलब या फिर कन्विक्शन नहीं होता है। तो ये सब नहीं होगा तो फिर आप सिखा नहीं पाओगे ना लोगों को।
तो उसी के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप मे बी स्टार्टिंग में फ्री में सिखाओ, लोगों को, अपने दोस्तों को सिखाओ, जिसको नीड है उसको सिखाओ, 2-4 केस स्टडी बना लो कम से कम। करेक्ट। केस स्टडी मतलब कि आप जो आउटकम देना चाह रहे हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल आप ड्राइविंग ड्राइविंग तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो जा रहा है, क्योंकि उसमें मुझे डर लग जा रहा है बार बार। बट ठीक है, मान लेते कोई भी आपका स्किल है, तो वो आप उसमें आउटकम जो देना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, लोगों को कोर्स लॉन्च करवाने में हेल्प करता हूँ और फिर सेल करने हम्म। में हेल्प करता हूँ। तो मुझे बस एक, मैं भी जाके कोर्स कर लेता तो मैं लोगों को सिखा नहीं पाता। नहीं। मुझे कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस तभी आया, यानी एक एक मेरे मेंटर बोलते थे कि ये 3 चीज का चीज होता है, क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करके लोगों को रिजल्ट दे पा रहे हो। तो हम्म। मुझे अभी इस टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि सुबह शाम मैं यही कर रहा हूँ, मतलब 1 महीना 2 महीना से नहीं, 4 साल 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ सुबह शाम। तो करेक्ट। मेरे दिन ब दिन जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेरा क्लैरिटी भी बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि हर दिन कुछ नया नहीं सीखने को मिलता, आज भी मुझे हर दिन नया सीखने को मिलता है, इस पॉडकास्ट में नया सीखने को मिल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाता है, क्योंकि मेरे केस स्टडीज में और लोग ऐड होते जाते हैं कि चलो मैं इस निश का भी हेल्प कर पा रहा हूँ, उनको भी हेल्प कर पा रहा हूँ। कुछ चैलेंजेस आता है तो मुझे प्रैक्टिकल गाइडेंस रहता है कि मतलब मैंने ये होता है कि एक होता है कि आप बुक से पढ़ रहे हो या कोर्सेज से पढ़ रहे हो, और दूसरा हो गया कि आप अपनी लाइफ से पढ़ रहे हो, खुद से सेल्फ हम्म। टॉट हो। तो मुझे हमेशा लगता है कि सेल्फ टॉट वाला लोग जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब उनके ओवरऑल। पास डेफिनेटली एक एज तो होता है, क्योंकि उन सेल्फ टीचिंग के लिए, सेल्फ टू बिकम सेल्फ टॉट, you need a lot of passion, you need a lot of seriousness to pick up a subject. आज की तारीख में जब डिस्ट्रैक्ट होना इतना इजी है, कोई अगर अपना टाइम देके अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सेट कैप्चर कर पा रहा है, सीख पा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत हल्की बात नहीं, हो बहुत अपने आप में एक अच्छी बात है। यस, और उस समय आपको पता भी चलता है ना कि 10वें 20वें आप और देखते हो कि ये इस तरह से नहीं होता है, आपको प्रोस हाँ। पता रहता है, कॉन्स पता रहता है, चैलेंजेस पता रहता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो फिर उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब करेक्ट। प्रॉपर मेंटर से भी सीख रहे हो, और उसके बारे में अपने आप और रिसर्च कर रहे हो, लोगों को डिलीवर कर रहे हो। तो जितना भी चीज हम लोग डिस्कस किए, कोई भी एंगल से लोग जोड़ ले, पहले ये करे वो करे, बट ये मिनिमम टोटल होना ही चाहिए। करेक्ट। हम बाकी स्किल्स की बात कर चुके हैं, एक्सपीरियंस की बात कर चुके हैं। एक जी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में, वो है एथिक्स। क्योंकि बिल्कुल। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, और ये बात हमने पिछले एपिसोड में भी की थी कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, बट अगर पैसा ही हम्म। आपका सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, या पैसा ही अगर आपका सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इस इंडस्ट्री यस। में पहले आपको अपना कंटेंट बनाना है, मार्केटिंग बनाना है, कोर्सेज बनाने हैं, पूरा अपने कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस सेट करना है, वेबिनार्स करने हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देना है, तब हम्म। जाके आपको स्केल मिलेगी और उस स्केल में आप पैसा कमा पाओगे। यस, क्योंकि अगर पैसा कमाना ही मोटिव रहता है, तो बहुत लोगों के पास क्या रहता है कि फिर पेशेंस खत्म हो जाता है। वो करेक्ट। लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो, मैं आज चालू कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि पहला वेबिनार कर रहे हैं तो पहला वेबिनार में पूरा एकदम वो सेल्स आ जाए। करेक्ट। और इंडस्ट्री में ट्रेंड भी सेट हो गया, मतलब मैं लोगों को बोलता था कि बहुत लोगों का, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट फर्स्ट वेबिनार में पॉजिटिव होता है। तो बोलते बोलते कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि ये हमेशा होगा। हम्म। बट मैं लोगों को हमेशा क्लैरिटी देता हूँ कि नहीं, इन लोगों का हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी होगा या फिर हम्म। नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। बट मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोचिंग बिजनेस में आ रहे हो, तो जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जो भी हम लोग आगे बात करने वाले, वो कम से कम 3 महीना 6 महीना 1 साल का पेशेंस रख के आइए। करेक्ट। क्योंकि आप सीधा इमेजिन करो ना कि आप जो 25-50 1,000 या 1 लाख या 2 लाख का जॉब लेते हो, उसके लिए आप कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो। लोग बोलते हैं 4 साल से कॉलेज का डिग्री कर रहे हैं, नहीं, 4 साल क्या, 12 साल पहले भी तो क्लास 1 to 12 पढ़े थे ना। तो मतलब 16-17 साल पढ़ के आप कुछ एक जॉब लेते हो। ऑफ करेक्ट। कोर्स कुछ एडिशनल जॉब रहा बड़ा वाला 1 करोड़ वाला, तो वो सब अलग बात है, बट वो करेक्ट। बहुत रेयर होता है। बट लोग, आम लोगों के केस में, जो हमारी ऑडियंस है होपफुली, उनके केस में वो रहता है कि जनरली एवरेज पैकेजेस वही रहता है, लाख रुपए के आसपास का। हम्म। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, कहने का मतलब कि कम से कम
6 महीना 1 साल मिनिमम दो कुछ अच्छा रिजल्ट्स देखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीना में भी आप अमीर हो जाओगे, नहीं। 6 महीना में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, 3 महीना में आपको दिखने लग जाएगा कि मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 महीना में आप हल्का हल्का ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। 12 महीना में आपको और सिस्टम्स पता चलने लग जाएगा, आपके लाइफ में और क्लैरिटी आने लग जाएगा। ये बात पे आप अग्री कर रहे हो क्या मनीष जी? 100%, 100% कि ये जो माइंडसेट है ना लोगों का कि हम्म। इसमें कहीं ना कहीं मैं लोगों को कम गलत बोलूंगा और उन कोचेस को ज्यादा कंप्लेन करना चाहूंगा उनके लिए जो चलाते ही एड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई आपके हम पहले वेबिनार में ही आपको प्रॉफिट दिला देंगे, आपको इस इंडस्ट्री में 4x 5x के रिटर्न्स दिला देंगे। एक तो ये बहुत गंदा ट्रेंड है हमारी इंडस्ट्री का कि जितने भी आपके एक्सेप्शनल रिटर्न्स होते हैं या एक्सेप्शनल केस स्टडीज होती है उनको आप टेस्टिमोनियल की तरह दिखाते हो। नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाला छोटा सा लाइन डाल दिया जो मतलब 2 या 3 के फॉन्ट में लिखा हुआ है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है और बोल देते हो कि ये, भले फिर आप बोल भी दो ये ए टिपिकल रिजल्ट्स हैं, एवरेज रिजल्ट्स ये होते हैं, लेकिन एवरेज का भी क्या, बिलो एवरेज की भी बात करो ना और क्लियर करो। मेरे मेरे वेबिनार में मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई मैं यहाँ पे किसी को भी 2x 3x रिटर्न्स नहीं ऑफर कर रहा हूँ। मैं कहीं पे भी ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यही एक एथिक्स की बात चल रही थी कि आपका एज अ कोच काम है लोगों को गाइड करना, लोगों को एक माइंडसेट दिलाना, लोगों को एक स्किल सेट देना। उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तब जाके उनको रिजल्ट आएगा। ये आपका काम है समझाना। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें हैं कि और मतलब। इस हाँ, हाँ, इसमें मनीष जी कल कल परसों शायद एक न्यूज़ देख रहे थे, कुछ ऐसा न्यूज़ आया था, क्या शायद आपको भी पता हो कि जो भी फिनेंस सेगमेंट में है, यानी स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो वो जनरली बहुत प्रमोट करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट दिस मच एंड बिकम करोड़पति एंड ऑल। तो उसके लिए एक शायद कोई लॉ भी आया है या फिर आने वाला है, जो बोल रहे कि आप इस तरह का मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है कि वो अभी इन्वेस्ट कर देगा या कुछ करेगा तो 1 करोड़ वो कमा ही लेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ अभी चालू वहां से हुआ है, बट यही सेम चीज हमारे इंडस्ट्री में भी और हर इंडस्ट्री में हर एड में आएगा, क्योंकि लोग लोगों के ड्रीम से खेलते हैं कि आपको 1 करोड़ का सपना दिखाते हैं, उस तरह से होता है। टेक्निकली ये बहुत सालों से रूल पहले से ही है हम्म। एंड अनफॉर्चुनेटली ये कभी बंद नहीं होगा। कितने भी रूल्स आ जाए, कितने भी लॉज आ जाए, हम्म। ह्यूमंस को है ना, और खास करके मार्केटियर्स को लूप होल्स में खेलने को बहुत मजा आता है कि हम्म। भाई ये एक लूप होल है। हम क्या करते हैं, हैक्स क्यों ढूंढते हैं हम कि चलो ठीक है हमको पता है कि एवरेज लीड कॉस्ट इतना आने वाला है, ठीक हम्म। है, लेकिन ये एक लूप होल दिख रहा है, हम एक ऐड ऐसी चला देंगे ना तो हो सकता है उससे हमारा लीड कॉस्ट 20% कम हो जाए। हम वो क्यों करते हैं? ताकि हम, वी आर नॉट ट्राइंग टू गेम द सिस्टम। ये दिमाग का काम करने का तरीका ही ऐसा है दैट हम्म। यू वांट टू गेट एन एज ओवर अदर्स। वो एज लेकर आने के चक्कर में कब आप कितना एनवेलप पुश कर लेते हो, कितना ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, उसका कंट्रोल नहीं हो पाता। यस, वो तो होता है। तो ये तो खैर फिर वो हो गया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का बात हो गया कि और बाकी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात चल रही है, हम्म। उन उनके ऊपर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है दैट दे एंडेड अप प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स as if they were genuinely using it without trying to tell the audience that I'm not just using this product, or I may not even be using this product, I'm just promoting it because I'm getting a financial gain out of it. वहां पे वो मिसलीडिंग हो गया कि आप बोले जा रहे हो कि ठीक है क्रिकेट की टीम बना लो, आईपीएल के टाइम पे इतना पैसा कमा लो, लेकिन ना वो खुद वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको खुद को पता है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा नहीं है इन द लॉन्ग रन, लेकिन फिर भी वो बेचे जा रहे हैं क्योंकि उनको उसके वजह से एक बहुत अच्छा रेफरल कमीशन मिल रहा है। तो दिक्कत वहां अच्छा। हो रही थी, लैक ऑफ क्लैरिटी के ऊपर या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो ये भी घूम फिर कर एथिक्स पे आ गया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यप। अगर एथिक्स तो मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट का हम लोग को लिखने का भी काम नहीं है। लोगों को खुद ब खुद होना ही चाहिए कि एथिक्स तो मिनिमम खुद ब खुद होना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लिखना पड़ता है क्योंकि हम्म। अगर आप 10 लोगों के, देखिए द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड दिस पॉडकास्ट इज बिकॉज हमारे काफी ऑडियंस है ना लॉस्ट है। हम्म। मतलब मेरे को जैसे मैसेजेस आते हैं कि मैं हम्म। इसके साथ कैसे डील करूं, मतलब भाई
तुम इस इंडस्ट्री में घुसे ही क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाले कोच ने बोला सिर्फ 5 दिन का काम है, 8 दिन का काम है और तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। नहीं होता ना ऐसा। बोलता है यार अब मैं कितना महंगा कोर्स लेके बैठ चुका हूँ, अब मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है। अब मेरा पैसा डूब गया ना तो मैं दूसरों का पैसा डुबाऊंगा। अरे ये कहाँ से, ये कोई तरीका ही नहीं हुआ ना काम करने का। वैसा पैसिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में मनीष जी आपका क्या ख्याल है? लोग बोलते हैं ना कि पैसिव इनकम, जैसे आप बता रहे थे ना 5-6 दिन में काम हो जाएगा, तो मुझे भी कुछ कुछ कोर्सेज याद आ रहे हैं जो लोग बोलते हैं, ऐड उनका चलता है कि बस 10 दिन मुझे दो और आपका पूरा पैसिव इनकम का स्ट्रीम सेटअप करवा देंगे, उसके बाद आपको काम करना ही नहीं है लाइफ टाइम। हम्म। तो उसके बारे में क्या है कि ऐसा पैसिव इनकम वाला चीज कुछ होता है या फिर क्या होता है? 100% होता है, 100% होता है। पैसिव एग्जाम्पल पे। इनकम इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल एंड एब्सोल्युटली नीडेड। मैं जब मनी माइंडसेट की बात करता हूं तो मैं उसी के हिसाब से तो बात करता हूं कि अगर आप पूरी जिंदगी काम करोगे और उस काम से पैसा कमाओगे तो आप एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन की तरफ चल रहे हो। क्योंकि जिस दिन आप काम नहीं कर पाए, इवेंचुअली आपकी बॉडी थक जाएगी, इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं तो स्लो हो जाओगे। अब एक इंसान जिसने 30-40 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, उसने एनालॉग से डिजिटल का ट्रांजिशन किया है। कंप्यूटर सीखा, फिर कंप्यूटर्स में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन सीखा, फिर उसमें इंटरनेट सीखा, फिर उसके जितने भी नए पैचेस आते हैं, जितने भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंजेस आते हैं, वो सीखा। अब वो इंसान रिटायरमेंट की तरफ आ रहा है, सपोज उसको और 10 साल बचा हुआ है जॉब का या बिजनेस का, और अब एआई आ रहा है जो पूरे आने वाले 2 या 3 सालों में पूरा का पूरा काम करने का तरीका बदल देगा। अब वो इंसान जो पहले ही अपने 50s में है या 60s में है, वो कितना एआई के साथ कैचअप कर पाएगा वर्सेस समबडी हु इज इन द अर्ली 20s जो स्टार्ट ही एआई के साथ कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं स्लो हो जाओगे, तो उसके हिसाब से आपका अर्निंग पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। तो उस हिसाब से पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मान लेना कि आप 5 दिन की मेहनत के साथ, 8 दिन की मेहनत के साथ एक पैसिव इनकम सोर्स कर लोगे, ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है। क्योंकि एक पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। आज अगर आपने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना लिया, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लिया 20-25 मिनट का, और वो 25 मिनट के वीडियो के ऊपर 70-80% रिटेंशन रेशियो आ रहा है, जिसकी वजह से आपके 5 एड्स दिख रहे हैं उस वीडियो में, और वो 5 एड्स का रेवेन्यू आपको आ रहा है, डू यू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टॉक फॉर 25 मिनट्स? डू यू हैव द स्टोरी टेलिंग मेथड टू होल्ड द ऑडियंस फॉर 25 लॉन्ग मिनट्स? नहीं होगा सबके पास। एक बुक है जिसकी मिलियन कॉपीज बिक गई, मिलियन कॉपीज बिकने के लिए एक इंसान को बुक भी ऐसा लिखना पड़ता है जो मिलियन लोग खरीदे या पढ़ सके। To write such a good book, you have to add so much value. To add that sort of value, you need to have that knowledge, that skill set, that experience. आपके पास क्या वो ऐसा कोई एक चीज का एक्सपीरियंस है? अगर है भी, then are you such a good writer? Do you have access to such good publishing houses? Do you have the capacity to market that book so well? तो पैसिव इनकम बुक से आ सकता है। एक, बिकॉज ये टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट, मैं इसके ऊपर तो फुल फ्लेजेड वीडियोस बनाने ही वाला हूं, बट एक बार के लिए क्योंकि हमारे ऑडियंस के लिए भी ये बहुत काम का है। डू यू नो पंकज, 99% of authors will never make money out of the book that they've written. हाँ, ये होता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया है। You do not make money from the sales of the book. You make money through the opportunities that the book brings to you. आप कितना ही एक 300-500 रुपए का बुक आपका बिकता है, आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 10-15 रुपए आएगा। आप बोल रहे हो कि मिलियन कॉपीज बिकती है। मिलियन कॉपीज एक दिन में नहीं बिकती है, मिलियन कॉपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years बिकती है। तो आपका हर दिन अगर 5-10-15-20 रुपए आपके बैंक अकाउंट में एवरेज आ रहा है, उससे आपके लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर बुक बिकम्स अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। सो जो पैसिव इनकम जो आपके पास आ रहा है वो बुक के थ्रू नहीं आ रहा है। उस बुक के थ्रू आपको रिकग्निशन मिल रही है, जिसकी वजह से आप जाके कहीं पे एक स्पीकिंग एंगेजमेंट कर रहे हैं, आप कहीं पे जाके एक टॉक दे रहे हैं। कहाँ, अगर आप पर्टिकुलर कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको एक ब्रांड कोलैबोरेशन मिल रहा है, तो उसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। Once you keep doing this over a period of time, if your book ends up becoming as popular as the Harry Potter or the Game of Thrones or the Martian or the Rich Dad Poor Dad or the Psychology of Money,
जब आपके दिन के 500,000 कॉपीज बिकने लगेंगे, तब जाके आपके बैंक अकाउंट में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अमाउंट आएगा जिसको आप एक करियर का पैसिव इनकम का सोर्स बना के आगे बढ़ सकते हो। तो 5 दिन में अगर आपको कोई बोल रहा है, 5, 10, 15, 20 दिन, 3 महीने में भी अगर आपको बोल रहा है कि आप मेरे साथ काम कर लो और आप एक पैसिव इनकम कमाओगे, गारंटी, एक चीज की पक्का गारंटी है, वो आपको पैसा डुबाने का एक तरीका दिखा रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी। गॉट इट। और यही चीज अगर कोचिंग में लिया जाए, तो जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ये भी पूछते हैं कि मेरे पास कोर्स है, मैं कोर्स रिकॉर्ड कर लूंगा और उसको बेचना है, मुझे लाइव सपोर्ट वगैरह नहीं देना है। मतलब एक बार में बनाकर जैसे 10 घंटे का कोर्स है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसी को बस मार्केटर को कुछ पैसा दूंगा, मार्केटर बेचते रहेगा। तो वैसा कुछ होता है क्या कि लाइव सपोर्ट देना ही पड़ता है उसमें भी, या फिर नहीं, फ्यूचर ऐसा में नहीं। ऑटोमेट कर सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? ऐसा नहीं है कि आपको लाइव सपोर्ट देने की जरूरत ही है, बट हम्म। डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, 10 घंटे का कोर्स अगर आप दोगे तो मेरे को 99% गारंटी आपका कोर्स कंप्लीशन रेशियो 1% से भी कम होगा, क्योंकि हम्म। लोगों को इतने लंबे कोर्सेज देखने ही नहीं है। और खास करके जहाँ पे लाइव सपोर्ट भी ना हो, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना हो, तो वो और कम हो जाते हैं चांसेस। तो वो तकलीफ यस। एक है। दूसरी बात है, अगर आपको बेचना ही है ये प्रोग्राम, तो आपको एक समझना पड़ेगा, आपका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होगा उसका आप एक बहुत छोटे से पार्ट को इतना कन्विंस कर पाओगे कि वो आपके कोर्स की खरीद ले। और ये हम पहले बात कर चुके हैं। आप स्टार्टिंग में भले 50, 100, 200 कॉपीज बेच लोगे, क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है वो चाहते हैं कि आपको रेवेन्यूज मिले। हम्म। तो वो आपके एड को भी पुश करेंगे आपके टारगेट ऑडियंस के साथ, अगर आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी की हुई है तो। But over a period of time, because you're not updating your ads, because you're not updating your program, because you're not keeping up with times, because new advertisers are coming up with better ads, better copies, आपका लीड कॉस्ट थोड़ा 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 करके बढ़ता जाएगा। आप यस। पहले 100% कमाओगे, फिर आप 98% कमाओगे, 95% कमाओगे, तो आपको लगेगा चलो ठीक है, जब तक घर से पैसे नहीं आ रहे हैं चलाते रहो एड। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में आपको दिखेगा कि आप हार्डली 5% कमा रहे हो, क्योंकि आपका मार्केट भी सैचुरेट हो गया। मनीष और पंकज अगर यस। आपके टारगेट ऑडियंस हैं, तो मनीष और पंकज ने आपकी एड्स 25 बार देख ली है। उसमें से पंकज ने शायद आपका कोर्स डिसाइड कर लिया कि वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि पंकज को लाइव सपोर्ट चाहिए। मनीष ने खरीद लिया है, तो फिर वो बार बार क्यों खरीदेगा? सो यस। बेच सकते हो, कितना बिकेगा, पैसिव इनकम सोर्स बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें है ना एक्सेप्शनल चीजों के साथ होती है। तो यू कांट रियली पुट अ नंबर टू इट, यू कांट गारंटी एनीथिंग। यस। एंड इनफैक्ट मनीष जी, मैं लोगों को ये क्लैरिटी देना चाहूंगा इस बात पे, डेटाबेस पे, कि होता क्या है कि बहुत सारे जो टॉप मार्केटर्स हैं, जैसे कि अनिक सिंगल, फ्रैंक कर्न, ये सारे के सारे लोगों का कहीं ना कहीं वो लोग अपने चैनल पे मेंशन करते हैं कि ये सिर्फ लो टिकट बेच के आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कभी नहीं। आपको लो टिकट बेचना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर अपसेल देते रहना पड़ेगा। अब लो टिकट का बात कहाँ से आ गया अचानक से? हम्म। लो टिकट का इसलिए आ गया क्योंकि जो हम बात कर रहे थे सिर्फ प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, उसको तो आप बड़े प्राइस पे तो नहीं बेच सकते ना, सिर्फ नहीं। रिकॉर्डेड कोर्स है। मार्केट में यूट्यूब में आपको मिल रहा है फ्री में, कोई जगह में बहुत सारी कंपनीज जहाँ 500,000 रुपए में आपको मिल रहा है कोर्सेज। तो आप उसको जाके 50,000 या 1 लाख 2 लाख में नहीं बेच सकते हो कोर्स को, उसको भी आपको भी कुछ उसी टाइप में 400, 500, 1000, 2000 रुपए तक रखना पड़ेगा पहली बात तो, अगर रिकॉर्डेड कोर्स होता है जनरली। एक्सेप्शन हमेशा होता है, तो एक्सेप्शन का हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप फॉर एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट का कोर्स हो गया कि इंट्राडे पे कैसे डेली बेसिस पे कुछ कमाए अच्छा खासा अमाउंट की, 10 वही लालच दे दे रहा है, फियर दिखा रहा है, लालच दिखा रहा है। तो इस टाइप का कोर्सेज है तो बहुत बार प्रॉफिटेबल हो भी जाता है, बट वो भी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। आपको हमेशा अब वो डालना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अपसेल देना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन लोगों से यही रहता है, जो मेरे ऑडियंस होते हैं, और क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोच आई नीड हेल्प के कुर्सी पे बैठ के, तो उसका यही रहेगा लोगों को रिकमेंडेशन कि आप लोग लाइव कंपोनेंट डालिए। इसको काइंड ऑफ लीड मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो लोग रिकॉर्डेड कोर्स को। छोटा सा रिकॉर्डेड कोर्स हो गया, मे बी आधा 1 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स हो गया, तो उसको एज अ लीड मैग्नेट यूज कर लो, 1 घंटे का फ्री में लोगों को दे दो, या फिर 99 रुपीज 100 रुपीज तक दे दो। हो सकता है उसमें आपको घर से भी पैसा देना पड़े, बट वो इवेंचुअली लीड का क्वालिटी आपके पास अच्छा आ रहा है। जब लीड का क्वालिटी अच्छा आएगा तो फिर धीरे 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 आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा क्वालिटी का लीड आया
फिर उसको आप दूसरा कोर्स बेच सको, तीसरा कोर्स बेचो। कहने का मतलब मुझे भी अभी तक जो मुझे तो नहीं सीखने को मिला है, और सेम चीज मैं आज तक से जब भी जाके देखता हूँ बड़े लोगों का चैनल पे जो रियल टाइम में वर्ल्ड के टॉप मार्केटर्स हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं बोलते ही है यही बात कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता सिर्फ फ्लो टिकट बेच के इवेंचुअली। जो आप बताए कि स्टार्टिंग में साल डेढ़ साल मैक्सिमम हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, और वो भी जब स्मॉल क्वांटिटीज है, हाँ हाँ, डेली का 10 कोर्स 5 कोर्स 10 कोर्स बेच रहा है। बट अगर उसको प्रॉपर बिजनेस बनाना चाहोगे नहीं तो हो वो पाएगा। प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे को अभी आप जब बात कर रहे थे तो एक दिमाग में आइडिया आया। सपोज आप आते हो मेरे पास और आप बोलते हो मनीष मैं लो टिकट प्रोग्राम बेच के पैसिव इनकम बनाना चाहता हूँ। मेरा जवाब आपको एक सिंपल होता, मुझे एक इंसान गिना दो जिसने लो टिकट प्रोग्राम्स बेच के मतलब पैसिव इनकम बना लिया है और उसका प्रूफ है, और मैं आपको उसका पैटर्न रिपीट करने में पूरी मदद करूंगा। मुझे लगता है कोई भी नहीं है ऐसा। तो अगर है ही नहीं तो आप कहां से 30 मार खान बनोगे? यस, मतलब लोगों को पता नहीं रहता ना, जब तक अंदर नहीं आते तो उनको पता नहीं रहता। उनको लगता है कि ये बुक बेच के प्रॉफिटेबल हो गया, सिर्फ बुक बेच के। तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि मैं बुक बेच के कैसे प्रॉफिटेबल हो जाऊं। तो बुक क्या होता है? वो स्टार्टिंग होता है, मतलब हम लोग फनल के टॉपिक पे इसको डिटेल्स में बात किए थे। बुक खाली आपका एक जरिया होता है क्वालिटी लीड लाने का। हर जगह आपको लीड ही चाहिए बिजनेस में, हर जगह। तो बुक भी एक तरीका है लीड लाने का। फिर उसको लोग कोर्सेज बेचते हैं, हाई टिकट मास्टरमाइंड्स बेचते हैं, तब जाके बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। तो सही बात यही है। है। तो क्विक रिकैप देने के लिए, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब तक तो हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट चालू भी नहीं किया, बट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज you should have right skills, you should have the right ethical thought process, you should have the experience which is a mix of knowledge, confidence, selling skills, good product, conviction, great offer, communication, sales skills, etc. तो ये सारा आपका एक्सपीरियंस जब आपका एक आ जाता है कि हाँ अब मैं ये बेच सकता हूँ, then you यस। should have case studies, you should have the right mindset that this is not going to be something where you just put 10 rupees in and you get 50 rupees out tomorrow. No, you will have to create a plan. You will have to run your ads for 3 to 6 months to know what is working, what is not working. You will have to take a risk, and you will have to have the right mindset that okay, why are you getting into this as an industry? यस। So ये तो आपके सब bare minimum requirements है। इसमें ही हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की है, बट आई वुड लाइक टू ड्वेल डीपर अपॉन दैट पंकज। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ, इफ लेट्स से आई एम कमिंग टू यू और मैं आपको बोलता हूं कि पंकज मुझे, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है ये स्किल सेट लगेगा, ये जिससे से सारी आप जो बोलोगे वो सारी चीजें मैं मानूंगा, लेकिन मुझे ये रिस्क नहीं लेना है एक न्यू बिजनेस, एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे इतने पैसों का रिस्क नहीं लेना है। मैं 6 महीने के एड्स का बजट क्यों पार्क करके रखूं, मैं 6 महीने के टूल्स का बजट क्यों पार्क करके रखूं। हमने ये बात जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, हमने इसको बहुत अच्छे से बात किया था इसके बारे में। आपको याद है मैं किस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ? डिजिटल बिजनेस वर्सेस डैश बिजनेस, फिजिकल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। डॉट्स कनेक्ट हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा और लगता है जाना पड़ेगा, मुझे अगर अभी क्लैरिटी अगर नहीं मिल रहा। फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले नहीं डरते हो, लेकिन डिजिटल अच्छा बिजनेस, अच्छा, हाँ वैसा वाला, हाँ। हाँ। तो अगर सपोज कोई बंदा आता है आपके पास और बोलता है कि मुझे डिजिटल बिजनेस चालू करना है, मैं रिस्क मतलब मैं जो भी आप बोलोगे वो करने को तैयार हूँ, कोर्सेज बना लूंगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूंगा, लेकिन मैं 6 महीने के एड्स का रिस्क क्यों लूं, मैं 6 महीने के टूल्स का कॉस्ट क्यों साइड करूं, हम्म। उसको आप क्या बताओगे? ये जो आप, क्योंकि आपने ठीक जो है। बताया था फिजिकल और डिजिटल बिजनेस के बारे में, मेरे को बहुत हम्म। अच्छा लगा था आपका थॉट प्रोसेस, तो प्लीज इसके हम्म। बारे में थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। ठीक है। तो बेसिकली दो तरह से मार्केटिंग होता है। पहली बात तो लोग आते हैं मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि, सभी नहीं बोलते ऑफ कोर्स, मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि "म, आए मेरे पास कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए, बट सवाल मुझसे ये पूछ रहे कि ऐड चलाना ही क्यों है। हम तो मानते हैं कि प्रोडक्ट में ही इतना दम होना चाहिए कि अपने आप बिक जाए, मार्केटिंग का तो जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा पहले कि नहीं, एड चलाना जरूरी है, चाहे कुछ भी आप कर लो। बहुत रेयर बिजनेसेस होते हैं। इनफैक्ट ये लाइन को आप बुकमार्क करके रख लो कि एक्सेप्शंस हर जगह आपको मिलेगा, ताकि मुझे बार बार ये लाइन नहीं बोलना पड़े। नहीं तो फिर आप कभी लेकर आ जाओगे कि देखो देखो आप तो ऐसा बोले थे, ये तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हर जगह मिलना है। बोलिए। अगर आप कोई भी केस स्टडी लेकर आ रहे हो तो एक केस स्टडी मतलब उसके जैसी 5 केस स्टडी लाओ। हाँ, तब भले
कि हाँ कुछ एक पैटर्न है उसमें हाँ कि किया जा सकता है। तो मार्केटिंग मिनिमम हर जगह करना ही करना पड़ता है। अब मार्केटिंग का वे अलग अलग हो सकता है, कोई ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा है, कोई टेली मार्केटिंग कर रहा है, कोई ईमेल मार्केटिंग कर रहा है, कोई मतलब कहने का मतलब ऑर्गेनिक कर रहा है काइंड ऑफ कि जहां कम पैसों में लग रहा है, या फिर जहां पेड एड चला रहा है, जहां पे रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा डालना है, लीड्स लाना है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि पेड एड्स ज्यादा अच्छा है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि आप आज एड चालू कर रहे हो तो आज के आज आपको लीड आना चालू हो जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आज के आज आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, वो डील क्लोज भी हो सकता है। बट ऑर्गेनिक करोगे, आप व्हाट्सएप का स्टेटस पे डालोगे, यूट्यूब में वीडियोस बनाओगे, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो मार्केटिंग करना जरूरी होता है। अब इसी के लिए मनीष जी आप वो बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि एड्स, मान लिए कि चलो एड्स में डालना है पैसा, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग मंथ में ही जितना हम एड्स पे पैसा डाल रहे, स्टार्टिंग मंथ में पूरा, फॉर एग्जांपल मान लेते 50,000 रुपए में एड पे डाल दे रहे समहाउ मैनेज करके, तो स्टार्टिंग में कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए मुझे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं आ सकता है, रियलिस्टिकली बताऊं तो बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं आता, बट आप कम से कम 3 महीना या 6 महीना चलाओगे, तब 200% मैं गारंटी देता हूँ कि प्रॉफिट आपको आता ही आता है। क्योंकि आप हर वीक, वीक आफ्टर वीक जब भी आप वेबिनार कर रहे हो, आपके पास लीड्स आ रहा है, आप डेटा ले रहे हो लोगों से, मतलब उनसे बात कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, कहाँ मिस्टेक था, कहाँ प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं था, आपके पास स्किल्स तो था ही, सब कुछ था ही, ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो था ही, तब आप जाके लॉन्च किए। सही लोगों तक आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, एक एक करके हर स्टेप्स को फिक्स करते जाओगे, तो लगातार हर वीक, मान लेते वीक में एक वेबिनार, 2 वेबिनार कर रहे हो, 6 महीना तक आप लगातार कर रहे हो, तो 6 महीना इंटू 4 वीक्स, 24 वीक्स, और वीक में मान लेते 2 बार अगर वेबिनार कर रहे हो, 48 बार, तो 50 बार आप वेबिनार कर रहे हो लगातार। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या मनीष जी कि 50 बार एक एक करके फिक्स कर रहा है? ऑफकोर्स ऐसा नहीं खाली वेबिनार कर रहा है, अब पहली वेबिनार किया उसमें लीड क्वालिटी खराब है, मतलब वो लाना चाह रहा था आईटी कंसल्ट, आईटी वाले लोगों को, आ गया कुछ और डॉक्टर्स बीएससी वगैरह आ वाले गए। लोग या आई हाँ बीटेक वाले लोग जिनको आईटी का कोडिंग का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हाँ ऐसा हाँ, हो मतलब सकता है। अलग टाइप के ऑडियंस आ गए, हाँ मार्केटिंग हाँ, में कहीं गड़बड़ था तो वो फिक्स कर दिया, करेक्ट। अगली बार मैसेजिंग में गड़बड़ था वो फिक्स कर दिया, सब कुछ हुआ, फिर धीरे धीरे क्वालिटी ऑडियंस आने लगा, फिर जाकर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ऑडियंस तो अब अच्छा आ जा रहा है, उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी है बट बाय नहीं हो रहा है, तो अब धीरे धीरे करके अपना वेबिनार को फिक्स कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, हर कुछ धीरे धीरे एक एक स्टेप को सॉल्व करते जा रहे हो। तो मेरे केस में तो ऐसा ही रहा है कि जितना लोग लगातार ट्राई करते हैं, 95% लोगों को, मैं वेबसाइट में भी ये डेटा लिख रखा हूँ कि 95% ऑफ माई क्लाइंट्स हैव गॉट द रिजल्ट्स विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। तो उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि होता है ये चीज। तो जब ये पता है आपको ये जर्नी, इसमें टाइम लगेगा, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, आप दो इसको टाइम, 3 महीना 6 महीना दो, 1 लाख रुपए पर मंथ अगर स्टार्टिंग के लिए आपको देना होता है, अगर एड में अच्छे से करने के लिए, तो आप 6 महीना का 6 लाख रुपए बजट लाकर चालू करिए। क्योंकि लोग, वही जो आप वापस से आपके क्वेश्चन पे आते हैं, लोग वो बोलते हैं, मतलब हम बैकग्राउंड ज्यादा दे दिया इसका, बट लोग यही बोलते हैं कि मैं 6 महीना का बजट क्यों रखूं? तो आप वो सोचो ना कि जब आप दुकान चालू करते हो फिजिकली, ऑफिस लेते हो या फिर फैक्ट्री डालते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ 1 लाख 2 लाख का बात नहीं होता है, वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ का बात होता है, वहाँ 50 लाख 1 करोड़ का बात होता है, मिनिमम 15 लाख 20 लाख का होता है। आजकल तो चाय का फ्रेंचाइजी भी लोगे तो आप कम से कम 10 लाख 20 लाख का होता है, क्योंकि मुझे भी कभी इंटरेस्ट था ये सब में। तो मिनिमम कोई छोटा से छोटा ब्रांड है, तो शुगर केन का जूस का ब्रांड है, तो वो 10 लाख का फ्रेंचाइजी फी मांगता है सिर्फ, उसके अलावा आपको रेंट देना होगा, रेंट जहां से ले रहे हो उसको आपको वो 2 2 साल का लीज पे लेना होगा, या कुछ कुछ सबका मतलब 20 लाख रुपए तो मिनिमम आपका जाता ही जाता है, अगर प्रॉपरली एक अच्छा सा छोटा सा स्केल, छोटा सा बिजनेस चालू कर रहे हो मिनिमम। और या फिर आप क्लोथिंग का स्टोर चालू कर रहे हो, तो वहां पे आपको 50 लाख का वो इन्वेंट्री डालना पड़ता है, हर जगह तो आपको इन्वेंट्री डालना ही पड़ता है। तो फिर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन को भी आपको बिजनेस के तौर पे देखना है। मतलब ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि जस्ट ये 1 आवर वाला जो पॉडकास्ट हो रहा है, या फिर ये नहीं, पूरा का पूरा जितने भी एपिसोड है कोच आई नीड हेल्प में, सारा का सारा का हम लोग का फोकस होता है कि कोच कोच ना बनाए, हम लोग कोचिंग बिजनेस बनाने में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए गाइड कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ कोच बनना है,
तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्लस बटन रहता है कहीं पे, आप वीडियो रिकॉर्ड करके ज्ञान बांटना चालू कर दो। तो आपका कुछ एक्सपेंस नहीं लगेगा, आराम से डे वन से फ्री में लोगों को करते रहो। एंड वहां से भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ऑफ होते हैं। कोर्स, हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है सक्सेसफुल होते हुए। बट आप उनका हिस्ट्री जाके चेक करना कि वो कब से पोस्ट कर रहे हैं। 3 करेक्ट। साल 4 साल 5 साल से कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, उनका इंप्रूवमेंट देखो, उनका क्वालिटी ऑफ वीडियोस देखो, डे वन पे क्या था, आज क्या है, कंटेंट क्या है। आप ऊपर ऊपर देखोगे कि मिलियंस ऑफ व्यूज आया है, नीचे जाके देखो उनका में दिखेगा कि 1 लाख व्यूज वाला वीडियो भी है और कम वाला वीडियो भी है। तो होता है वैसा। तो ये या तो पूरा टाइम दो बहुत लंबा तक, या फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हेजिटेट नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बस मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट ला रहा हूँ, मुझे 1 महीना में प्रॉफिट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। हम्म। मतलब मैं अभी पॉडकास्ट में हूँ इसलिए मैं थोड़ा आपका एक्सपेक्टेशन पे नहीं जवाब दे पाया। नहीं, लेकिन ऐसा जो नहीं मेरे है, क्लाइंट्स मतलब आते हैं तो मैं उनको देता हूँ डोज पूरा। करेक्ट। नहीं, बोलने का तो सिर्फ इतना सा है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस is the amount of money that you will generate out of a business, the amount of profit that you will generate out of a business is going to be a direct function of what have you invested at the start. You can't invest Yes. one and expect a return of 10. That sort of a profit growth happens over a period of time when you've built a brand, when you've built a lot of credibility, when you've built a lot of authority, when you've built a lot of testimonials and case studies. तो वो सब बनाने के लिए टाइम लगता है और उसके लिए पेशेंस लगता है। अगर आप पहले दिन से करना चाहते हो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस, why are you shying away from making an investment in a digital business when you're, as Pankaj said, when you're investing in a physical business? Are you going to think twice if your brand tells you that you'll have to get a store of at least 500 600 square feet? You'll go and look for that sort of a store in the market, and then you have to pay the market rent for it. Then they'll tell you that they'll require this sort of fitting or this sort of interior designing. You'll get that done. They'll tell you they require this amount of lights. They'll tell you this is going to be the brand franchisee fee. Or even if you start your own brand, you'll still have to go and look for a place. You'll still have to go and get the interiors and the lighting done. You'll still have to go and get all the physical equipment, the computers and the staff and the stock. You will make an investment over there. So if that investment makes sense, why are you shying away from making an investment in digital businesses? यस। एंड मनीष जी, ऐसा भी होता है वहां पे कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड रहते हैं, टाइम लगेगा इसमें, हाँ, 3 महीना तक तो कस्टमर नहीं भी आए तो कोई बात करेक्ट। नहीं, मैं घर से दूंगा, बजट बना कर रखते हैं प्रॉपर। ये चीज ऑनलाइन नहीं होता है, बजट नहीं बनाते ऑनलाइन जाकर। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि मुझे 50,000 रुपए का एड्स चलाना और मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उनको कम से कम 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट करने के लिए उनको 3 लाख रुपए का रेवेन्यू करना पड़ेगा हम्म। मिनिमम। चलो, हम्म। 3 लाख नहीं, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए का तो रेवेन्यू मिनिमम करना पड़ेगा, तब जाके 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट लेकर जाएंगे। ठीक है, हम्म। मैं उनको बोलूंगा गारंटी हो सकता है आप एक टाइम मशीन बनाओ और 2023 में नहीं, हमको वापस 2016 में लेके जाओ। हम्म। ये भी तब ठीक है। तब कोचिंग एज एन इंडस्ट्री बहुत न्यू थी, तब लोगों को हम्म। पता नहीं था, तब लीड कॉस्ट आपकी 3 या 4 रुपए की थी। आज you have to move with the market. Today your lead cost is anywhere between 100 to 200 rupees depending on your niche, depending on how well are you doing your performance marketing. And 200 also if you're doing good performance marketing in a very specific niche. I know of coaches who think they can manage performance marketing by themselves, are getting lead cost of 400 rupees and are going into losses. तो नहीं होने वाला ऐसा। वो 50,000 रुपए देके 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाना गया वो जमाना। कीप अप विद टाइम्स। यस। और 400 तो बहुत कम एग्जांपल ले लिए, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि 1,000 1,500 रुपये आ रहा है। फिर भी वो सीखना नहीं चाहते, वो चाहते कि ठीक है 1,000 आ रहा है, आने दो। मतलब खैर ठीक है आज आज हम उनका दोनों की एनर्जी बहुत मेलो है, वरना हम लोग ऐसे चढ़े आते ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर। हाँ कोई नहीं। नहीं ठीक है हाँ। हाँ, पंकज, आपने एक टॉपिक बहुत स्ट्रांगली डिस्कस किया जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी भी है, वो है मून लाइटिंग।
क्योंकि काफी यस लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको कोचिंग इंडस्ट्री में पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, बट उनको मून लाइटिंग से तकलीफ होती है, या उनके कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं जो भी उन्होंने साइन किए हुए हैं उनके ऊपर, उसके वजह से वो कर नहीं पाते हैं ये। तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगे, एंड देन वील टॉक अबाउट इट। यस। तो बेसिकली यहाँ पे होता है क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरे कोच होते हैं जो बाय डिफॉल्ट कोचिंग कर रहे, तो उनके लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं, उनका जॉब ही है कोचिंग, तो वो अपना कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्विच करना चाहते हैं, कोचिंग में आना चाहते हैं स्टार्टिंग से, वो किसी और इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये इश्यू उनके साथ आती है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ पहले से, इस कंपनी में उस कंपनी में, तो अब मैं चाहता था हूँ कि इस कुछ भी रीजन से कोचिंग में आना चाह रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, बट वो आ नहीं पाते। क्योंकि जब वो मेरे पास आते तो मैं बोलता हूँ कि एड तो आप अपना चेहरा दिखा के बनाओगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। तो बोलते नहीं, अपना चेहरा दिखा के एड नहीं बना सकते, क्योंकि फिर कंपनी वाला देख लेगा तो फिर वो हटा देगा, उनको हम्म। रिस्क लगता है, वो अलाउड नहीं है। बहुत सारे कंपनीज में होता ही है कि आप उस कंपनी के अलावा कहीं और से पैसा नहीं कमा सकते हो। पहले तो होता था कि कॉम्पिटिटर, उसके कंपनी का कॉम्पिटिटर वालों के साथ नहीं काम कर सकते हो, बट आजकल वैसा भी बहुत जगह मैंने देखा है कि वो सीधा बोलते हैं कि नहीं, आप आपका कुछ अलग सोर्स ऑफ इनकम हो ही नहीं सकता, आप पूरा टाइम यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, 9 घंटा के बाद क्या करें, और फोकस करो, 3 और फोकस करो। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं जॉब उप करता था, बट मैं करता था वहां पे कि जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। और इनफैक्ट जब मैं स्टार्टअप पे काम करता था, स्टार्टअप में जहाँ काम करता था वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि या तो आप कंपनी ऐसा चूज कर लो जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम्म। सबसे बेस्ट बात है। हम्म। बट अगर रिस्ट्रिक्शन है, सवाल उनके लिए आता है, तो वो क्या करे। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के लिए जब आप नए नए एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप कंपनी का ब्रांड के अंदर वो करो, अपना चेहरा मत दिखाओ, कंपनी का ब्रांड दिखाओ। मतलब कि आप एक कंपनी, मतलब कुछ भी एबीसी कंपनी बना ली है, जैसे आप मान लेते हैं कुछ वेब होस्टिंग के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, तो हम्म। उससे रिलेटेड एक नाम बना लिए और उस नाम के अंडर में बिजनेस करिए फिलहाल। अपना चेहरा मत दिखाइए ऐड पे, तो वो रिस्क अवॉइड हो जाता है। फिर फर्दर रिस्क अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि फ्रंट एंड में जो वेबिनार कर रहे हो वहां पे भी आप चेहरा मत दिखाओ। मतलब बहुत रिस्की हो जाता है मनीष जी इसके बारे में। मतलब मैं तो जनरली यही सजेस्ट करता हूँ, मुझे मतलब ये हैक हो गया कि काइंड ऑफ मैनेज करना। मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, या तो तुम फुल टाइम आ जाओ इसमें, सीरियस हो जाओ, या तो मत करो। क्योंकि अगर मैं बोलने का तो मैं बोल दूंगा 3-4 पॉइंट, बट मुझे याद आ रहा है कि जब मेरे क्लाइंट्स आते थे मेरे पास, तो मैं उनके साथ यही करता था कि आप कर तो लो कंपनी के ब्रांड के अंदर धीरे धीरे, बट वो टाइम लगता है ग्रोथ होना में। इससे बढ़िया आप पर्सनल ब्रांड में करो और किसी और के नाम पे करो, कुछ और करो। ये यही होता था, मतलब प्रैक्टिकली ये होता है रियल टाइम में। बट मेरा थॉट प्रोसेस इसको लेके बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। हम्म, When you are doing a job, you have promised your time, your skill set, and your work ethics for a limited amount of time during the day. Let's say हम्म, about 8 hours, 10 hours. What you do with the rest 14 hours, your company has zero control over that aspect of your life. If you can manage 2 to 3 hours daily and you're doing something, as far as you're not using their proprietary software, you're not using their laptop, you're not using any of the assets that your company has provided to you, they have zero control on telling you what you need to do or what you can or cannot do with your life. If you're working in such a company, I would really request you to try and look for better opportunities in your industry. This is genuinely my thought process, because I, at one point, I absolutely sympathize with the situation that you are in. But you also need to understand, if you allow your company or your employer to capitalize on your situation, you are giving them an opportunity, you are giving the space to do that. You can always go and talk to the HR, and you can, first of all, one more very important thing, which is something that everybody should know, a clause like this in your bond, in your employment agreement, is illegal. You need to know about this. A company cannot stop you from generating an additional source of income. As I said, you cannot use their proprietary software, you cannot use their laptop, their equipment. You can't,
you'll have to create that divide. When you are working, you cannot even open your you cannot even open your business email to check what sort of an email you've got. Because for that 10 hours, you are 100% employee of that particular company. But beyond those 10 hours, the moment you step out of that office, if you, let's say, a co-working space is the front, you're working in a co-working space. I'll make it even better. You're working in a co-working space. Until 6 p.m., you're working for your company. You need to have another subscription at that same co-working space in your brand name. And 6:01, if you switch from your desk to another desk with a different laptop, and if you start working in front of your colleagues, they cannot tell you anything. Technically, that is the role that you are living in. But if you're working in such a company which stops you from growing, please make sure that you find yourself a better company. यस, क्योंकि जो टॉप नॉच कंपनीज होती है तो वो एंटरटेन करती है इसको कि आपका साइड ये पैसिव इनकम होना चाहिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप दिखाओ, अलग अलग स्टार्टअप बनाओ, वो लोग तो एंटरटेन करती है इस चीज को. सिर्फ कुछ कंपनीज होती है जो बोलती है कि नहीं करना है. इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो कंपनीज भी नहीं, ये जनरली मैनेजर्स करते हैं स्पेशली कि नहीं, डराते लोगों को. उन मैनेजर्स का नसीब अच्छा है ना, उनके टीम मेंबर्स मेरे जैसे नहीं है. लोगों को मैनेजर्स की दहशत होती है, वो मैनेजर को मेरे जैसे टीम मेंबर्स की दहशत हो जाती फिर. बट हाँ, मून लाइटिंग, मैंने एक बहुत अच्छी रील देखी थी थोड़े महीनों पहले मून लाइटिंग के ऊपर, जहां पे वो बंदा बोल रहा था हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स और 4 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, उनको कोई कुछ नहीं बोलता. हमारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर खुद अपने और फैमिली मेंबर्स के 3 बिजनेसेस में डायरेक्ट इन्वेस्टर है. वो वहां से डायरेक्टर का पैसा कमा रहा है, वो वहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता. मैं यहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाला बंदा अगर एक छोटा सा कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ या कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर का काम कर रहा हूँ, तो तुम मेरे पे क्यों आ रहे हो? बहुत गलत है ये. मेरे को ये पर्टिकुलर कल्चर ही पसंद नहीं है. यस. और बताइए तो नेक्स्ट, because we are talking about the whole concept of, okay, we're talking about how do you start a coaching business with bare minimum budget, bare minimum requirements. Before we start talking about numbers, there is a very important topic that we need to talk about, which is you'll always have 2 options in business, which we've spoken about in all our episodes in the past. You either pay by money or you pay by time. अगर आप पैसों के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज ये बात समझ लो, आपको फिर टाइम निकालना ही पड़ेगा. वो कैसे निकालना है फिर वो आपका लुकआउट है. बिकॉज आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको सब खुद करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नॉट पुटिंग, सी यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू. यू विल हैव टू फाइंड अ बैलेंस. या तो आप पैसे इन्वेस्ट करो और प्रोफेशनल्स को अपना काम दो और वो आपको जो काम करके डिलीवर करेंगे उसके लिए आप फिर अपना स्केल करो, या तो आप खुद सीखो. You will have to learn everything. You putting in the time and watching this episode in itself is showing me that you're interested to learn. But try to find a balance. You can't do everything by yourself. So the reason why I'm telling you this is because if you spend money, it becomes very easy, because then you can run your ads, you can build an infrastructure, you can build your systems very, very, very smoothly. Because professionals are working it for you. They're creating a brilliant website which loads quickly, which has all the possible social media integrations, which is all what you need to do is you need to open your email, type an email, and your blog post will get posted. Or you will have to spend time, because you'll have to build your knowledge, you'll have to build relationships, you'll have to build your brand, you'll have to build content before you start making any income. So with that thought process, we can now move to the next part of this episode, where we'll actually start talking about how do you start a particular coaching business with bare minimum investment. What are the investments that you need? What are the tools which are absolute must requirements? And how can you actually start your business under 1, 2, 3, 4, about 5,000 rupees per month in tools and ads? So let's start talking about that. If you Yes. आपको कुछ और बात करनी है पंकज
इस टॉपिक के बारे में, और कैन वी नहीं, मूव? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इनफ. नाउ वी कैन गेट इनटू द एक्चुअल नंबर्स की कितना मिनिमम चाहिए, का क्या क्या मिनिमम टूल्स के साथ जो लोग चालू करना चाहते हैं, दे कैन जस्ट स्टार्ट. हाँ, so let's start with that, Pankaj, with your tool investments. What do you think are the absolute bare minimum tools that will be required? ठीक है, एक बार मनीष जी पॉज करिएगा ना इसको, वो हाँ जरूर. स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है. हाँ, एक सेकंड. हाँ पंकज, so would you like to talk about what exactly are the tools यस, that मैं are शेयर bare करता minimum हूँ कि requirements? हाँ. आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, सब परफेक्ट है. ठीक है, उससे मैं स्क्रीन शेयरिंग हट गया था. तो हाँ. बेसिकली मैंने लिस्ट बना रखी कि मिनिमम क्या क्या टूल्स लोगों को चाहिए रहेगा स्टार्टिंग के लिए, एकदम बेयर मिनिमम. हाँ. स्टार्टिंग में लोगों को ऑटोमेशन करने का या फिर बहुत बड़ा बड़ा चीज सोचने का जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग में अपना जो बोलते हैं ना एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, वो आप एस्टेब्लिश करो कि आप जब आ रहे हो कम से कम बजट लगा के. क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे ना 3 महीना 6 महीना सस्टेन करना है, तो कम से कम बजट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा एड्स में लगाइए, टूल्स में कम लगाइए. बहुत सारे कोचेस होते हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ हर टूल बाय कर लो, ये टूल बाय कर लो, वो टूल बाय कर लो, क्योंकि उनको टूल्स में कमीशन मिलता है मैक्सिमम लोगों करेक्ट. को. करेक्ट. तो हम लोग को उस सब से मतलब नहीं है, हम लोग को चाहिए कि मिनिमम कम से कम खर्चा में कौन कौन सा टूल्स ले सके. पहले तो आपको डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ता है. एब्सोल्युटली. डोमेन हो गया आपका नाम, और वेब होस्टिंग हो गया कि कहाँ पे आप अपना जब वेबसाइट बनाओगे, लैंडिंग पेजेस बनाओगे, तो उसको कहाँ पे रखोगे. तो ये करेक्ट. लगभग ऑन एन एवरेज डोमेन तो ईयरली पे करना होता है, और मतलब 500-1000 रुपया का आता है, और वेब होस्टिंग का 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से लगभग आता है. तो इसका आप लगभग 1000 रुपये टोटल पकड़ सकते हैं डोमेन प्लस वेब होस्टिंग का, जिसमें आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट होस्ट हो जाएगा, लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज बन जाएगा. करेक्ट. सेकेंड टूल होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, मैक्सिमम कोचेस के पास ऑलरेडी होता है, बट जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, जूम. क्योंकि जब आप क्लासेस करते हो स्टार्टिंग में, मैं सजेस्ट करता हूँ लाइव ही क्लास करो. तो जब क्लासेस कर रहे हो तो आपको जूम चाहिए ही चाहिए. लोग बोलते हैं कि चलो मैं इस टूल पे भी कर लेता हूँ, उस टूल पे भी कर लेता हूँ, वो तो फ्री का टूल है. तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, जूम पे करो, जूम बेटर है. क्योंकि सभी लोगों को जूम का आदत है. स्कूल कॉलेजेस में पहले होता था कि जब पोस्ट पैंडेमिक सभी लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर रखे, तो लोग एक्वेंटेड है जूम से पूरा का पूरा, उनको स्ट्रक्चर पता है कि कैसे ऑन करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं. तो जब लोगों को जूम का ही आदत है तो दूसरा टूल आपको क्यों एक्सप्लोर करना है. आप करेक्ट. जूम ही एक्सप्लोर करिए, उसका भी 1000 1200 1300 रुपया पर मंथ लगता है. सेकेंड वो हो गया. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होता है एक प्रोफेशनल ईमेल. आप नाम तो ले लिए जैसे PankajAgarwal.com, बट जब आप ईमेल्स भेज रहे हो लोगों को तो आप वैसे नहीं भेज सकते ना, something@gmail.com. तो वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता. जब तक वो आपका पर्सनल है तो अच्छी बात है. और जब आप ब्रांडेड ईमेल बना रहे हो, मतलब बिजनेस बना रहे हो प्रॉपर प्रॉपर, तो उस समय आपको yourname@yourdomain.com लेना पड़ता है. मतलब ईमेल आपका कंपनी के नाम पे हो या तो जो भी हो, तो उसका भी लगभग हम लोग मान के चलते हैं, उसका भी लगभग 500 रुपया पर मंथ आप पकड़ लो, चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा कंपनी से ले लो. अब फोर्थ आता है, एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए होता है. व्हाट्सएप नंबर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जैसे ही कोई आपका लैंडिंग पेज पे आया, ऐड पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गया, रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां पे लोगों को सब अपडेट्स देते हैं. तो उससे क्या होता है, अटेंडेंस बढ़ जाता है, हम लोग लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करवा सकते हैं. तो ये चीज है. तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बेसिकली कुछ नहीं चाहिए आपको, एक तो सिम कार्ड चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए. तो 200-300 रुपया उसका आप पकड़ लीजिए पर मंथ. एंड लास्टली, ये सारा डेटा जो भी आप लीड जनरेट कर रहे हो, क्योंकि लीड का इंपॉर्टेंस हम लोग बहुत बहुत बार बात कर चुके हैं तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो भी लीड का डेटा है, यानी आपका जो भी कस्टमर साइन अप कर रहा है, नाम ईमेल फोन नंबर दे के सिर्फ लीड बन रहा है, तो उसको फ्यूचर में आप वापस से बेच सकते हो. तो उसको कहीं पे स्टोर करना है, नहीं तो फिर वो आप ग्रो करोगे उसको रिमार्केटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे. तो उसको स्टोर करने के लिए एक सीआरएम लेना पड़ता है. तो बहुत फ्री सीआरएम भी आता है, बट हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप 1000 रुपया लगभग दे रहे हो पर मंथ स्टार्टिंग के लिए. तो इस तरह से 4-5 हजार रुपये आपका पर मंथ टूल्स पे जाएगा. इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई टूल्स मिस हो रहा है. क्या लगता है मनीष जी, आपको कुछ टूल्स मिस हो रहा है क्या हमारा? मैं पर्सनली चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करें, बट उसमें हम्म. फिर क्या होता है, वो ईमेल मार्केटिंग टूल का फायदा लोग समझ नहीं पाते हैं. लोग है ना, अगर आप हम्म. व्हाट्सएप मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हो, आप हम्म. इमेजिन कर लो आपका ईमेल मार्केटिंग टूल का रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल कवर कर रहा है. आप इस हिसाब से समझ के चलिए. बट अगर आप इसको भी और थोड़ा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो एक ईमेल मार्केटिंग टूल ऐड कर दीजिए, वो थोड़ा कॉस्ट बढ़ा देगा. बट उसके अलावा जैसे पंकज ने बताया, अ डोमेन एंड अ वेबसाइट इज ग्रेट, जूम इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, गेटिंग अ प्रोफेशनल ईमेल,
get yourself a another SIM card, which is a professional SIM card, which is activated on a WhatsApp, so that you can generate maximum number of people. You can get maximum number of people to attend your webinars or your sales calls, and you get a CRM software. यस, और बहुत बार मनीष जी वो सीआरएम ही हम लोग का ईमेल मार्केटिंग के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाँ। कन्वर्ट किट है तो उसी से ईमेल भी भेज ले, उसी में डेटा भी स्टोर कर ले। Correct, but technically ConvertKit is neither economical nor is it a CRM tool. It's actually a email marketing tool with some CRM features. तो वो अलग है। तो आपको अपने हिसाब से एक, अगर आप एक अच्छा टूल ढूंढ लेते हो जो ईमेल मार्केटिंग एंड CRM दोनों में आपकी हेल्प कर सकता है, कि व्हेन योर बिजनेस इज स्मॉल, ऑल व्हाट यू नीड टू डू, सो व्हाट इज CRM? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो ऐसे बोल दिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। आपको कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, कि ये बंदा लीड है, ये बंदा वेबिनार अटेंड कर चुका है, ये बंदे ने वेबिनार अटेंड करके प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा। तो ये पूरा जो आपका रिलेशनशिप है एक पर्टिकुलर लीड के साथ, कस्टमर के साथ, वो मैनेज करने के लिए जो टूल होता है उसको CRM टूल कहते हैं। ठीक है। और एक ईमेल मार्केटिंग टूल ये होता है कि जितने भी आपके लीड्स है वो एक जगह पे स्टोर्ड है, और वहां से आप उनको कनेक्ट करने के लिए ईमेल भेज रहे हो, बिकॉज प्रोफेशनल ईमेल्स विल नॉट अलाउ यू टू सेंड मोर देन लेट्स से 100-200 मेल्स इन अ डे, फिर आपके ईमेल स्पैम में चले जाएंगे। तो यू विल नीड अ प्रॉपर टूल और ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली, उनका काम ही ये है, उनका जो बैकएंड सेटिंग होता है टेक्निकल चीजों में ना घुसते हुए, वो अलाउ करता शायद है कि मनीष आप, जी का वो नेट स्टॉप हो गया है, मैं पॉज करता हूँ 1 सेकेंड। सो बात वही चल रही थी कि एक थोड़ा ग्लिच हो गया, जस्ट इन केस अगर आपको ग्लिच नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है। एक छोटा सा रिकैप, एक ईमेल मार्केटिंग टूल टेक्निकली ही बनाया, डिजाइन ऐसा किया गया है कि वहां से आप बहुत सारे ईमेल्स एक साथ भेज सकते हैं एक दिन, एक ही समय में। So if you have these domain and your website, your Zoom account, your professional email, your WhatsApp number, your CRM and or email marketing tool, literally in less than 5,000 rupees per month, you can start your coaching business. Bare minimum. Having said that, these are your tools cost. Both Pankaj and I come from the school of thought where it is impossible to grow any business without running ads. So, besides your tool cost, you will need one more cost, which is your ads cost. अब यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है ना, मैंने एक मिनिमम और a good, a must have, a good to have and मैक्सिमम बजट तो हो ही नहीं सकता। आप दिन का अगर 1 करोड़ का भी एड चला सकते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो एक बेयर मिनिमम, इससे कम सोच रहे हो तो भाई फिर आपको कोच आई नीड हेल्प की ऑडियंस में शायद आप गलती से पहुंच गए हो आज। तो एक बेयर मिनिमम अमाउंट जब मैंने लिखा ना, जैसे ही मैंने वो नंबर लिखा, मेरे को पंकज के फेस पे कैसे उदासी दिखने लगी। तो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी द बेयर मिनिमम बजट शुड बी 300 रुपीज पर डे, ओके, बट अ गुड टू हैव बजट इज अबाउट 1,000 रुपीज पर डे। ठीक है। तो आपको ये भी कॉस्ट ऐड करना ही पड़ेगा आपके बिजनेस में। यू शुड नॉट start a coaching business if you don't have that capacity to invest, let's say 300 rupees per day towards your ads or 1,000 rupees per day towards your ads. The more the better, but at least 300 minimum. ठीक है। इसके ऊपर आप बात करना चाहेंगे पंकज, क्या करना चाहिए किसी कोच को 300 रुपीज के लीड कॉस्ट के साथ या 1,000 रुपीज के लीड कॉस्ट के साथ? बेसिकली मेरे पास जो भी आते हैं लोग, मैं तो उनको बोलता हूँ 1,000 रुपीज ही सजेस्ट करता हूँ कि 1,000 रुपीज ही करो। उसके पीछे सिंपल सा मैथ्स होता है कि लगभग 50 रुपए 100 रुपए पर लीड आता है मिनिमम। मान लेते हैं 100 रुपए रख लेते हैं, कभी कम आता है कभी बेसी भी आता है। तो 100 रुपए अगर आपका लीड कॉस्ट आ रहा है और 1,000 रुपए आप डेली खर्चा कर रहे हो एड पे, तो 10 लीड आपको डेली मिल रहा है। 10 में से 7 दिन तक चला रहे हो, 7 दिन के बाद आप वेबिनार कर रहे हो, तो 70 लीड हो गया आपके पास। 70 में से 25-30% लोग आते हैं आपके लाइव वेबिनार पे, तो लगभग 20-25 लोग आपके वेबिनार पे आएंगे। तो जो मनीष जी बता रहे थे, मैं सैड क्यों हो गया था उस समय, फिर मैं सोचा यार 300 रुपए में क्या ही चलेगा ऐड, क्योंकि मतलब 7,000 रुपए आप खर्चा कर रहे हो, 1,000 रुपीज पर डे, तब जाके आप थोड़े से लोग 20-25 लोगों के साथ आप वेबिनार कर सकते हो। लेकिन अगर आप कम पैसा खर्चा करोगे, 200-300 रुपया पर डे, क्योंकि चलाने का तो आप
₹80 से भी चला सकते हो। $1 होता है उनका, मतलब 80-85 रुपीज के हिसाब से भी आप पर डे ऐड चला सकते हो। 2 लीड 3 लीड करके जनरेट होता है पर डे। बट उसमें क्या होता है कि लोग कम आएंगे आपके पास, तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि कैसे करें। फिर हम लोग मिलकर एक आइडिया लगाए थे कि स्टार्टिंग में अगर बहुत ही कम बजट हो किसी का, कि नहीं हम ₹300 ही लगा सकते हैं, ₹10,000 महीना का लगा सकते हैं ऐड पे, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपके पास लीड कम आएगा। नो डाउट कि 4 लीड 5 लीड 10 लीड, मतलब जितना भी पड़ रहा है, 3 लीड मान लेते हैं अगर ₹100 के हिसाब से पड़ रहा है, तो ₹300 पर डे लगा रहे हो, 3 लीड पर डे आपके पास आ रहा है। तो आप वेबिनार मत करिए स्टार्टिंग में, आप करिए 1-to-1 क्लोजिंग। 1-to-1 क्लोजिंग क्या है? आपके पास जैसे ही लीड का डेटा आया, आप फोन उठाइए, उनको पर्सनली फोन करिए और उनका समझिए प्रॉब्लम्स क्या है, वो एड में क्यों देखकर क्लिक किए थे, क्या उनको अट्रैक्ट किया, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो सब समझिए। फिर उनको सॉल्यूशन दीजिए उसका, कि चलो मेरे प्रोग्राम में ये सब है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो वो वैसे आपको क्लोज करना है। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स हमारे स्टार्टिंग के वैसे भी थे, जो कम बजट से चालू करते थे और वो पर्सनली 1-to-1 क्लोजिंग करते थे, और 1-to-1 में क्लोजिंग बहुत अच्छा होता है। करेक्ट। वेबिनार में आप बहुत लोगों को ला रहे हैं एक साथ, आपको सबको कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके 10-15% का इवेंचुअली, जब आपका वेबिनार अच्छा होता है, तब कन्वर्जन रेट आता है। बट 1-to-1 में क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा क्लोजिंग रेट हो सकता है, अराउंड 50% 60% भी आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो क्योंकि मनीष जी 1-to-1 क्लोजिंग की है पहले, तो मनीष जी आप लोगों को गाइड करना चाहोगे क्या कि अगर 1-to-1 में कैसे क्लोजिंग कर सके? अगर जस्ट वो, अगर ज्यादा ₹1,000 कर रहा है तो चलो वेबिनार कर रहा है, वो हम लोग डिस्कस किए पहले भी। बट अगर जो स्टार्टिंग कर रहा है मिनिमम बजट से ₹300 पर डे, तो वो कैसे कर सकता है 1-to-1 क्लोजिंग? करेक्ट। मेरे को इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। सो एज यू नो, आई हैव वेरी रिसेंटली रीस्टार्टेड माय वेबिनार्स एट पेचेक टू प्रॉफिट। सो मुझे ये तकलीफ हुई, मैं उस माइंडसेट से आ रहा था कि मैंने दिन का कुछ 1200-1500 रुपए का बजट रखा हुआ है, तो मुझे एड्स में लीड्स आ रही है और मैं वेबिनार पे उनको क्लोज करूंगा। बट आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। एक, आई वुड नॉट से सैचुरेशन, बट एक तरीके का मेच्योरिटी आ गया है मार्केट में जो पहले नहीं था। आज क्या होता है, लोगों को फ्रीबीज नजर आ गए, टूल्स नजर आ गए, फ्री वेबिनार इनवाइट्स नजर आ गए। पहले एक सेंस ऑफ स्कैरसिटी होता था कि अगर मैं ये वेबिनार अटेंड नहीं करूंगा ना तो मेरा चांस छूट जाएगा। अब लोगों को पता है, ये वेबिनार नहीं करूंगा, नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करूंगा, नेक्स्ट नहीं करूंगा उसके बाद करूंगा। इसके लिए अभी बिजनेस करने का तरीका भी चेंज होना ही चाहिए, विच बाय दैट आई मीन टुडे व्हेन यू आर रनिंग योर एड्स, you need to make sure that you actually reach out to your leads until your brand becomes big. See, today paycheck to profit, I know I'm going to create a lot of content, but by the time I reach there, जहां पे मुझे फ्री के 10 लीड्स आ रहे हैं और पेड भी 10 लीड्स मैं खरीद रहा हूं, जब तक वो पैरिटी नहीं आता है तब तक मुझे पता है कि मेरे को कोई नहीं पहचानता है। तो उसके हिसाब से हर बार आपको, इवन इफ यू आर रनिंग ₹1,000 पर डे वाला बजट, make sure that you make sure that you call your leads, create a connect with them, understand what are their needs, where are they coming from, what exactly made them click on your ad. That will tell you what is resonating with your audience, what is your brand standing for in the minds of your audience. Talk to your audience as much as possible. And if you're running just ₹300 of ad budget per day, the moment you get a lead, you should call them, you should connect with them, and you should tell them, you should fix a meeting with them. First of all, understand whether they are your audience or not, qualify them. Once you've qualified them, understand what is their need and tell them to get a 30 to 40 minute schedule in their day, fix a meeting with them on a Zoom, connect with them face to face, and then pitch them the product. The difference is going to be they've already told you where they are from, where do they stand in their lives, they are married, unmarried. Let's say in case of paycheck to profit, they'll tell me that they are facing debt issues, or they don't know how to manage their money properly, or they are absolutely zero when it comes to investments, or they are a big believer of law of attraction but they can't manifest anything, or they don't understand the concept of money blocks. So let's say if Pankaj is one of my leads and I have a conversation with him and I understand his biggest issue is money mindset with regards to how does he grow his business from wherever it is to 10x. So now I know what aspects of my program can help him. I'll tell him a lot about the whole concept of money mindset. I'll
talk to him, I'll probe him more to understand if he is facing any money blocks. I can tell him how to use law of attraction to eliminate those money blocks in that 30-40 minute meeting. Once that meeting goes right, at that point, you personally pitch your level 1 to them, to Pankaj. I would pitch my level 1 to Pankaj, and I would tell him to become a part of my community. So you'll basically do, let's say, 2 to 3 webinars. You'll do 2 to 3 webinars in a week, but you'll do it at a very small audience of 1 or 2 people in a group. And when you do that, this may seem very time consuming because it is. This may seem very strenuous because it is. मनीष जी पॉज करिएगा ना एक बार. So when you are actually running a short budget, you should actually look at that as an advantage to build a relationship with your audience. Call people, understand their needs, book a meeting. Once you've booked a meeting, tell them about the product. How can your product help them with their pain points? And with that, do a closing. Similarly, if you're running 1,000 rupee budget per day, you'll obviously get enough number of leads, but call those leads also. Build a relationship with them. Tell them, invite them to the webinar. Remind them that you're going to wait to see them at the webinar. And then when you see them at the webinar, give them a shout out. Hey, Pankaj, thank you for coming. Thank you for making the time. Hey, Aditi, thank you for actually remembering to, suppose, let's say I speak to Aditi on a call and she tells me she may or may not attend. Okay. And when you actually see Aditi on the Zoom attendees list, to tell them, hey, Aditi, thank you so much for making the time. I'm so happy that you actually managed to come here. So even a small shout out like this goes a long way in building a relationship. So irrespective of your cost at the start, while your brand is still small, invest the time to call your leads and build a relationship with them and see how those leads end up becoming customers. And even if they don't become a customer, you'll still get social media following. You'll still build a better brand. You'll build a better perception about yourself and your brand in minds of the people, which is intangible and which is fabulous. Yes. That's how you manage your ad costs. Yes. However, हाँ बोलिए सॉरी. हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहेंगे कि ये हर जगह, चाहे आप कितने भी बजट से चला रहे हो, कॉल करिए. क्योंकि जब आपका बजट ज्यादा होने लग जाएगा ना, तो आप कॉल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा. पर्सनल 1-to-1 टच नहीं बना सकते हो, आप स्टार्टिंग में ही बना सकते हो. सेकेंड रीजन कॉल करने का मेरे तरफ से ये भी होता है कि 7,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल आप एड में लगा रहे हो और आपका प्रोग्राम 5,000 रुपया का है, तो 70 लीड है आपके पास. हो सकता है वेबिनार की एक भी नहीं बिका, बट 70 लीड है आपके पास. 70 लोगों को कॉल करिएगा, आपको उसमें से बस 2 लोगों को क्लोज करना है टू स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट्स. करेक्ट. तो मेरे क्लाइंट्स तो मैक्सिमम ऐसे होते थे कि बिका नहीं तो बोलते थे ठीक है नेक्स्ट वेबिनार ट्राई करेंगे, थर्ड वेबिनार ट्राई करेंगे. तो मैं तो उनको बोलता हूँ हाँ, मैं तो उनको बोलता हूँ कि कॉल करिए ना, लोगों को कॉल करिए, पता करिए. बेचने का इंटेंशन से मत कॉल करिए. माइंड में अपने लिए मोटिवेशन रखिए कि क्या पता एक दो तो बिक जाए तो एड कॉस्ट भी निकल जाएगा और अच्छा लगेगा. बट 70 लोगों का फीडबैक मिल रहा है, 70 में से मान लेते 25 लोगों से भी आपका बात हो गया, तो बाकी लोग कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई सही से बात नहीं कर रहा है. 25 लोगों से बात हो रहा है तो आपको अपने वेबिनार के बारे में और बेटर फीडबैक मिलेगा, उनको क्या पसंद आया, क्यों पसंद आया. तो नेक्स्ट वेबिनार आप और अच्छे से कर सकते हो. जो हम बात कर रहे थे ना थोड़ा देर पहले की स्टार्टिंग में एपिसोड का, कि 6 महीना तक आप लगातार कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल हो कैसे नहीं सकते हो. इसीलिए हम बात कर रहे थे कि आप जब इतने लोगों को कॉल करिएगा तो हर बार फीडबैक कुछ ना कुछ मिलेगा, आप इंप्रूव करोगे, फिर कॉमन फीडबैक मिलेगा, फिर इंप्लीमेंट करो, इंप्रूव करो. प्रोसेस रिपीट करते जाओगे तो आपका वेबिनार अच्छा होते जाएगा. और इनकेस अगर रिपीट नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका सेल नहीं हो रहा था तो वो आगे जाके भी नहीं होगा, क्योंकि आप फंडामेंटल तो फिक्स किए ही नहीं हो ना. आप जाके अपने डिजिटल मार्केटर को बोलो कि नहीं आप सही से ऐड नहीं चलाए, लीड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ नहीं होना है, किसी का कुछ नहीं जाएगा. आप ही का बिजनेस है, लॉस एट द एंड आप ही को होगा. आप दूसरा कंपनी पकड़ो, दूसरा कोच पकड़ो, कुछ भी करो, बट आपका बिजनेस वो नहीं चलेगा जब तक आप लोगों को पर्सनली कॉल करके नहीं समझोगे. यहाँ पे बहुत जन ऐसा भी बोलते कि हम अपने स्टाफ को लगा देते कॉलिंग के लिए, तो वहां पे भी हम सजेस्ट करते हैं स्टाफ खाली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो आप बोल रहे हो, बट आप खुद से कॉल करोगे तब डिटेल्स में पूछ सकते हो ना उससे कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है. मतलब 10 लोगों से बात की है तो उसके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन आयर को भी मॉडिफाई कर सकते हो.
करेक्ट। और सारे का सारा डेटा जो भी आप कॉल कर रहे हो, बस खाली कॉल करके पूछिए मत। ये कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। तो खाली पूछ के रखिए मत, उसको पूछ के एक्सेल शीट में डाल के रखिए, या फिर आप कॉपी पेन में कहीं पर रखिए नोट करके, ताकि बाद में आप टैली कर पाओ कि अच्छा इस वीक का ऐसा अटेंडेंस था, उस वीक का लोगों का फीडबैक ऐसा था। तो जब फीडबैक आपको पता चलेगा, तो फिर जब आप ऐड में भी कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आप टैली कर सकते हो कि इस ऐड का क्वालिटी कैसा था, ऐसे लोग आ रहे थे, वैसे लोग। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही हम स्ट्रेस कर रहे थे कि कॉलिंग का हजारों हजार फायदा है। अभी हम लोग कुछ फायदे डिस्कस किए, बट हर तरीका से फायदा है। आपको फीडबैक मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है, आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर सेल्स ही नहीं होगा तो फिर आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे ना। आप 1000 से 2000 बजट करोगे ही नहीं, क्योंकि 30,000 रुपये आप महीना बजट लगा रहे हो। जब तक आपको 30,000 या उससे ज्यादा नहीं आने लगेगा, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? अब सेकेंड चीज है, मान लीजिए कुछ लोगों का 30,000 ऑलरेडी आ रहा है, फर्स्ट बार ही ब्रेक इवन हो गया था या फिर प्रॉफिटेबल थे। तो अब वो लोग पूछेंगे क्या मुझे कॉल करना चाहिए, मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। मैं स्टिल बोलूंगा कि आप लोग कॉल करिए, ताकि आप उसको प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ा सको। आप सोचो, जब 30,000 से 60,000 आप बैठे बैठे कर लिए बिना कॉल किए, तो कॉल करके फीडबैक लोगे तो आप उसको ऑफकोर्स और मॉडिफाई करोगे। हर जगह फीडबैक लोगे तो मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये चीज था सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो पहले तो हमारा हो गया था टूल्स का कॉस्ट, सेकेंड हो गया एड का कॉस्ट, और थर्ड हमारा आता है जो मनीष जी आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, जो ये फाइनल कंपोनेंट है। अब देखिए, किसी भी जगह, इमेजिन बाइंग अ कार. Buying a car is just the first investment, but you just don't buy the car for the sake of owning a car, right? What is the use of owning a car if you don't drive it? So आपने 300 से 1000 रुपया तो सोच लिया कि ठीक है, आपने अपने मन में बजट बना लिया कि आप ये करोगे कि इतने के एड्स चलाओगे, लेकिन एड्स चलाने का डिसीजन लेना, उसका बजट बनाना और एड्स को एक्चुअली चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है। और ये फर्क कैसा है और ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि ये ना दिखने के लिए बहुत आसान है कि आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। सबसे पहली बात, हम्म। मैं कितनी बार लोगों को पूछता हूँ एड्स कैसे चलाते हैं, वो बोलते हैं क्या है, एक पोस्ट बनाओ, उस पोस्ट को बूस्ट कर दो। हम्म। इससे ज्यादा खतरनाक तरीका नहीं है अपना पैसा जलाने का, ठीक है ना? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको एड्स चलाना है तो दूसरा ये होते हैं सबसे बड़े महारथी जो बोलते हैं पोस्ट को बूस्ट कर दो और आपका एड्स चल गया, वो एड्स नहीं है। हम्म। उसके अलावा है एक दूसरे तरह के महारथी होते हैं जिनको लगता है क्या करना है, एड को मेटा बिजनेस स्वीट पे डाल देना है, 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और हो गया आपका काम। नहीं, अगर यही काम होता तो इतने लाखों मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज नहीं एग्जिस्ट करती। 5 साल से पंकज के घर पे जो दाना पानी चल रहा है वो नहीं चलता अगर ये इतना छोटा बात नहीं है। प्लीज स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग मार्केटिंग एजेंसीज, प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग परफॉर्मेंस मार्केटर्स लाइक दे आर thieves trying to steal money out of you. It's a very important skill set and you don't know it, so be humble and learn. As यस। it is, when your budget is low, you have only 2 options: either learn how to manage these ads, and I am telling you, this is a fact, ये लर्न करने के लिए क्या 5 से 15 हजार रुपए तक के आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। या तो सीखो, या तो be humble and add one more layer of budget to your overall management, which is finding yourself an agency. don't don't be stingy with this one particular cost, because सब कुछ बना दिया आपने, लेकिन अगर आपके एड्स एफिशिएंटली नहीं चलेंगे ना, आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो अगेन, you need your tools, you need your ad budget, and you either need to learn very proficiently how to run and manage your ads, which is another skill set, or you need to be humble and find yourself a marketing agency which will fit your budget. यस। एंड जो आप बता रहे थे मनीष जी की लोगों को लगता है कि वो खुद से चला सकते हैं। तो बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या वहां पे वैल्यू ऐड करोगे, हम भी एक कोर्स देखे थे, हम खुद ही चला लेंगे। तो हम उनको जनरली यही बोलते हैं कि ठीक है, खुद चला कर आइए 1 महीना। पहले हम उनको एक्सप्लेन करते थे कि देखो बहुत सारा चीज होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। बट
फिर हम बाद में बोलने लग गए उनको कि ठीक है आप चला कर आ जाओ, क्योंकि मुझे एक चीज पता चल गया, जो ऐसा माइंडसेट लेकर आते हैं, ये जो क्वेश्चन नहीं पूछते हम खुद चला सकते हैं, तो वो हमारे कस्टमर नहीं बनने वाले। खास करके एजेंसी के लिए, एजेंसी क्लाइंट्स का बात कर रहे थे, तो वो नहीं बनते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ खुद चला लो। फिर एक महीना बाद वो वापस से आते हैं 90% लोग रिपीट आते हैं, बोले हाँ आपका बात सही था। तो होता है क्या, जो लोग नए हैं, नए ऑडियंस है, जो अभी बस चालू कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि खाली टारगेटिंग सेलेक्ट करना कुछ नहीं होता है। टारगेटिंग बहुत बार आप ब्लैंक भी रख दोगे, ब्रॉड रख दोगे, काम कर जाता है। बहुत बार नहीं भी रखोगे, मतलब इस पे भी डिपेंड करता है कि ब्रॉड भी रख रहे हो तो कब रखना है, कब नहीं रखना है। उसके अलावा आपका मैसेजिंग होता है, कि जो आप एड का कॉपी लिख रहे हो, एड का इमेज बना रहे हो, या फिर वीडियो का स्क्रिप्ट हो रहा है, वो भी पार्ट ऑफ द एड्स हो गया। लैंडिंग पेज जो बना रहे हो, वो भी एड से पूरा सिंक में होना चाहिए। फिर जो आप वेबिनार का कंटेंट है, जो आपका निश है, सिर्फ एड मतलब खाली वो नहीं हो गया। लोगों को लगता है एड मतलब खाली एड मैनेजर में जाके बूस्ट करना, वो टूल को चलाना। तो जो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, वो खाली आपका एड मैनेजर टूल को नहीं चलाती है, वो पूरा एंड टू एंड फनल देखती है, जिसमें टूल सिर्फ एक पार्ट होता है, उसके अलावा 100-150 पार्ट और होता है। ऑटोमेशन हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, रीटारगेटिंग हो गया, बहुत सारा चीज होता है। फिर ब्रांडिंग हो गया, सेल्स में इंप्रूवमेंट हो गया, वेबिनार स्क्रिप्ट को कैसे बेटर कर सके, ऑडियंस से फीडबैक कैसे ले सके। इनफैक्ट जो हमारे पास्ट एपिसोड्स जितना भी था, 19-20 एपिसोड्स, सारा अपने आप में एक प्रोसेस है। जैसे निश क्लैरिटी है, तो आप कुछ भी निश पकड़ के चालू कर दोगे, तो हो सकता है कि आप एक निश लेकर आओ कि मुझे कैंडल मेकिंग सिखाना है लोगों को, तो वो एक निश है, आप चालू कर दोगे मुझे कैंडल मेकिंग सिखाना है। बट उसी को थोड़ा बेटर वे में आप कर दोगे, वो अगर मार्केटिंग एजेंसी के साथ या फिर अपने कोच के साथ जा रहे हो, वो आपको बस इतना सा सजेस्ट कर दिया कि जिसमें आप पहले लिख रहे थे ऐड पे, लर्न हाउ टू क्रिएट योर कैंडल्स, या फिर सेकेंड ऑप्शन आप लिख दिए स्टार्ट योर कैंडल मेकिंग बिजनेस, या फिर कुछ उस टाइप से, मतलब जहां पे आप लोगों को सिखा रहे हो कि अपना घर बैठे बैठे हाउ यू कैन अर्न लाइक 50,000 रुपीज पर मंथ बाय सेलिंग कैंडल्स, इस टाइप से। तो आपका टारगेट मार्केट भी इंप्रूव हो जाता है। ये वन एग्जांपल। इसी तरह से हजार हजार चीज पे इफेक्ट होता है। तो देखने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी नहीं होता है। तो या तो जैसा मनीष जी बताइए, तो आप किसी से सीख लो पहले, अगर कम बजट है ऑफ कोर्स। अगर बजट आपका अच्छा है तो पहले सीख लो और फिर जाके एजेंसी को हायर कर लो। सीखना तो मैंडेटरी है, ताकि जब आप हायर भी कर रहे हो तो आपको पता रहे कि वो सामने वाला जो एजेंसी बात कर रहा है कि सर आपका लीड कॉस्ट हाई आ रहा है, कम आ रहा है, या फिर आपका टारगेटिंग में ये इशू आ रहा है, आपका मैसेजिंग ऐसे कर लेते हैं, तो एक आपको माइंडसेट ओपन रहे कि हाँ वो क्यों बोल रहा है ये चीज। क्योंकि हम दोनों साइड का एंगल देखे हुए, हम कोच भी रहे इसके लिए और हम एजेंसी भी चलाए, तो हम दोनों पार्ट देखे हुए उस एक्सपीरियंस से बता रहे कि सीखना तो मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है। तो यही ये चीज है। एंड डिड यू सी, ये होता है 5 साल का एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया, लेकिन पंकज ने आपको लिटरली 30 सेकंड्स में बता दिया कि वो क्या क्या एक मार्केटिंग एजेंसी करती है। राइट फ्रॉम योर टारगेटिंग, योर मैसेजिंग, मैसेजिंग में ही आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, सबटाइटल्स होना चाहिए, आपका ब्रांडिंग इस तरह से होना चाहिए, आपका कॉपी हो गया, आपका कॉल टू एक्शन हो गया, आपका ट्रैफिक रेगुलर आना चाहिए लैंडिंग पेज पे, आपका यूटीएम लिंक्स नहीं बताया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। सो प्लीज स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग प्रोफेशनल्स हु आर एक्चुअली one of the most important aspect of running and managing your business well. ठीक है यस। ना? तो ये बातें हैं। So now we've given you a bird's eye view. What do you need to become a coach? How do you start the entire coaching business at a bare minimum budget? What kind of tools will you need? What kind of ad cost will you need? How do you manage your ad cost if you have a very small ad budget per day? And how should you actually build a rapport with your audience? Why should you call every lead? How do you run your ads? And how do you decide whether you run your ads or whether you outsource your ads to an agency? The next and the last leg of this race is how do you deliver your product? And that's the easiest thing, because when you are starting out, when your budget is small, when you know that you don't have any access to tools, the only option that you have is to maximize your Zoom membership and deliver your product live. That's it. मतलब इसमें और यस। कुछ है ही नहीं बताने के लिए। यस। मतलब लोग अटकते हैं इसमें, जैसे हम लोग पहले भी बात की एपिसोड्स में,
लाइव करे कि रिकॉर्डिंग करे। मतलब वापस हम लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइव ही कर लो स्टार्टिंग में, ताकि आपको कोई बैरियर नहीं रहे, मतलब एंट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाए। रिकॉर्डिंग करने जाओगे आप तब सोचोगे इतना दिन रुके, ये करे वो करे, बट अगर लाइव कर रहे हो तो आज के आज आप जाके रिकॉर्ड कर, मतलब आज के आज सेशन देना चालू कर सकते हो। तो लाइव करिए, ज्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट चीज है कि ये सब हम लोग बात कर लिए कि कितना कॉस्ट होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए। इसके अलावा अब आपको चाहिए कि ठीक है, अब क्योंकि हमारा टाइटल कुछ उस तरह का होने वाला था, हाउ टू स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस अंडर 20,000 पर मंथ। तो मुझे मैंने ये रियलाइज हुआ कि फिर लोग वो सोचेंगे कि ठीक है कॉस्ट वगैरह तो बता दिया, बट बाकी चीज तो बताया ही नहीं कि कैसे चालू करते हैं। तो कैसे चालू करते हैं, निश कैसे फाइंड करते हैं, ऑफर कैसे बनाते हैं, वेबिनार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सारा के लिए आप एपिसोड 1 to 19 वापस से देख सकते हो, इन केस अगर आप लोग वो एपिसोड नहीं देख रहे हो, करेक्ट। या फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा देख रहे हो, फर्स्ट एपिसोड देख रहे हो, या आप एपिसोड नंबर 20 या पहली बार देख रहे हो, तो बाकी चीज सारा का सारा हम लोग डिटेल्स में इसी तरह जैसे आज डिस्कस किए, हर कुछ डिटेल्स में डिस्कस किए हुए एक एक पॉइंट पे। तो उसको आप एज अ कोर्स ट्रीट करो। स्टार्टिंग में आपको फ्री का कोर्स हो गया, उसमें आपको 5,000 10,000 भी स्पेंड नहीं करना है। एपिसोड 1 एपिसोड 2 लेकर 19 तक वापस से पूरा देख लीजिए, पूरा 100% क्लैरिटी मिल जाएगा, है ना मनीष जी? Absolutely. And we are always available. You can always leave your comments below. You can ask us your questions below. You can also give us feedback on how do you think, what can we do to improve the overall quality of content. Yes. We are always open for all sorts of suggestions. So yeah, you can always reach out to us. Yes. So that's it from my side मनीष जी। और कुछ आप बोलना चाहोगे या फिर क्लोज कर सकते हो फिर आप चाहो तो? Nahi. Today has been a very interesting episode. Today, I believe this episode may feel like the tonality of this episode is different, but believe me, when you actually see this entire episode again, you will realize that the information that we've shared is coming out of a lot of empathy, because we've seen so many good coaches not being able to run their business. Just before starting the conversation today, Pankaj and I were actually talking about another coach जिसके life के बारे में हम discuss कर रहे थे कि इतना अच्छा knowledge base होने के बावजूद भी they are not being able to pull it into the market, because that is how we created this list. Maybe that energy is rubbing off. Maybe it's just not one of the days. And for all we know, maybe we are overthinking, and this is the episode that is going to get us the maximum number of traction, maximum amount of traction. So we'll keep all the overthinking aside. This has been a beautiful episode. I hope you've gotten a lot of value. Please click pictures of the notes that you've taken, share them on social media. You can always connect with us. I'm more than happy to connect with you if you have any questions. Pankaj is also very approachable. You can just connect with him. That's about it from this episode. Let us know what else would you want us to see, what else would you want us to cover in the future episodes. I'll now see you in the next episode. Take care, keep smiling, keep going, keep growing. Thank you so much. Bye bye.